Indians है ना. So there are two type of literature. One is foreign, one is Indians है ना. Indians means Indians have written about India. The foreign literature. Hello everyone, good afternoon. I'm audible to you. All right, so students, the handouts may have been uploaded on the portal. Have you received the handouts on the portal? This is of total 9 pages. Do you have handouts? This is on chapter 1, Sources of Ancient Indian History. Online students, have you received handouts on the portal? This is a notes. If you have not received, we will ask the official to upload it on the portal. All right, so you have not received it. All right, so I will ask official to upload it on the portal. We will get it after this class. All right, or once this video will be uploaded, you will get it. For the offline students, this notes is shared with them, and this note is of 9 pages. This covers the sources of Indian history. All right. So basically, if we talk about the sources of Indian history, we can divide the sources into 2 parts. One is archaeological sources, another is literary sources. Okay. In terms of archaeological sources, we can understand that archaeology is what is archaeology. Archaeology is something which is about the study of monuments, coins, inscriptions, paintings, sculptures, है ना. और literature is something which is about the something has been written. We have something in the written form, in the book form, that is literature, and something which is in the inscribed on walls, painting, monuments and all, that is archaeology. ठीक है. So दो तरह के sources हमारे पास है, literature and archaeology. So we will understand it today and let us see how much we are going to cover it today. So if we go into the first term, that is literature. Okay. So in India, especially Indian history, the literary sources can be divided into different parts. So if we see this one, is it visible? All right. So the literary sources can be divided into, this is one. So in the literature, we can say there are 2 types of literature. One is Indian literature, another is the foreign literature, or the persons who have been traveling to India and they came India and then they had written about Indians, है ना. So there are 2 type of literature. One is foreign, one is Indians, है ना. Indians means Indians have written about India. The foreign literature means foreigners who came to India, they have written about India. In case of foreign, there are 3 type of foreigners who came to ancient India. 3 types, and they came from 3 different areas of the world. The first type of the people who came from foreign land was Greek, Athens, है ना. यूनान से लोग आते थे. And especially during the Mauryas and before Mauryas, the people came from there and they have written about. One such person is a Megasthenes. He came to India during Chandragupta Maurya, Mauryan Empire, and he wrote the book called Indika. Other type of person are the Buddhist one. They came from China. Faiyang, Itzing, Huansang, you know. These are the people who came from China in the Gupta and later period, and they were the pilgrimage. They travel for the religious purpose in India. And the third category of the people are the Islam, Muslim people, who travel from Central Asia, Turkish region, Turkish, Arab, and in sub-Saharan, and they came here and they have written about India. So there are 3 type of foreign category sources. Okay, so we will talk about that also at some time. Firstly, let us talk about the Indian literature. Okay, in case of Indian literature, we can divide Indian literature into 2 parts. The one is religious in nature and other is non-religious. Religious मतलब वैसा टेक्स्ट जो धर्म के दृष्टिकोण से लिखा गया हो, है ना. We have written our sources through religious purpose, and other is non-religious मतलब it may be written under the patronage of any king. जैसे अर्थशास्त्र लिखा गया है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अर्थशास्त्र लिखा गया है ना. लेट्स से बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा. He wrote the history of Harsh
version during that time, है ना. So there is a religious type of texts and another type of text is non-religious, है ना. तो सबसे पहले हम religious texts पे चलते हैं. If we go to the religious texts, so we find in India there were two types of religious texts. ठीक है. इंडिया में दो तरह के religious texts थे. कैसे? In India, in the religious only, let's say there are three type of religious texts. पहले बात करते हैं. There are three type of religious texts. One was a Hindu religion, and in that time in ancient India, Hindu religion may be called as a Brahminical literature. In ancient India, you all know that Hindu term is a very recent term, है ना. In medieval time में term start हुआ word Hindu. Before that, the Hindu was not used as a religion before that time, है ना. So we call them as a Brahminical tradition. And so one type of literature is from the Brahminical literature. Other literature is Buddhist literature, and the third literature is Jain literature, है ना. So in ancient India, there were three important prominent religions, and they have produced different types of literature. So we will discuss that very briefly. So in the Brahminical literature, there are two types of Brahminical literature. One is Shruti. Shruti means listening, है ना, where the person is to listen from their teachers. शिक्षक से सुनते थे. तो ऐसा जो लिटरेचर था जो सिर्फ सुन के हम समझते थे. We used to listen about them, we understand about them. So the first category of literature is Shruti, that is listening. The second category of literature is remembering, स्मृति. तो पहला ऐसा लिटरेचर था जिसमें क्या करते थे, सिर्फ सुनते थे, और दूसरा जो लिटरेचर था उसमें क्या करते थे, याद करते रहते थे, है ना, रिमेम्बर करते रखते थे. ठीक है. तो दो तरह का लिटरेचर हमारे एंशिएंट इंडिया में ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की तरह मिलता है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ लिटरेचर श्रुति, इन विच वी यूज्ड टू लिसन ओनली. इसमें भी कई कैटेगरी के लिटरेचर है श्रुति में, है ना. इन द ब्राह्मणिकल लिटरेचर वी हैव श्रुति, अनदर इज स्मृति. In the Shruti, we have four important texts. One is Vedas, Brahmanas, Aryankas and Upanishad. Vedas में जो चार वेदा हमारे पास है, there are four Vedas that we know: Rig Veda, Sam Veda, Yajurveda, Atharvaveda. These all four Vedas were not written in the beginning. Initially, it was not written. It was written very late. We will see how it was written, when it was written. हम अभी देखते हैं. पर पॉइंट है, ये सब सुन के ही हम जानते थे, है ना. तो वेद हम जानते हैं चार वेद है. ब्राह्मणास का मतलब अभी हम समझेंगे और सबका मतलब समझते हैं. तो जो वेद जो लिखी गई, सपोज द वेदास वर रिटेन ऑलरेडी. सो वेदा वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स राइटिंग. इट वाज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड फॉर अ टीचर. जो ब्राह्मण जो टीचर होते थे उनके लिए समझना बहुत टफ था. सो यू कैन इमेजिन व्हाट मे बी द कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स. The person who want to read Veda, it was tough for them to understand, है ना. आप लोग कोचिंग क्यों लेते हैं? To make the things easier, है ना, समझ में अच्छा है, क्लियर जल्दी हो जाए, है ना. So Vedas were tough to be comprehended by the people. That is why the different types of writings were written to understand Vedas only. A Rig Veda is the primary text upon which all the Vedas have been written. And also all these other writings, Brahmanas, Aryankas and Upanishads. आप एक एग्जाम्पल लीजिए. सपोज यू आर स्टडिंग मैथमेटिक्स इन योर क्लास 10th, है ना. सो इन द मैथमेटिक्स यू हैव NCERT book. Generally the teachers refer NCERT mathematics for class 10th. Apart from NCERT, you may be also referring other books to understand, to have a deeper understanding of mathematics, because NCERT, it is very tough to understand NCERT because they don't have proper formulas and all, है ना. So we take a help of which book? R.D. शर्मा एक दूसरी बुक है जो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है. उसमें R.D. शर्मा है ना, नॉट आर. आपने क्या बोला? R.D. शर्मा ही बोला है ना. हाँ, R.D. शर्मा मैथमेटिक्स के लिए. हाँ, एडवांस है, बट NCERT क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? in class 10th examinations, all the questions will be coming from NCERT book only. The questions will not come from any other sources. NCERT से सीधे questions आता है. But we read R.D. Sharma
ताकि वो कॉम्प्रीहेंड सही से कर पाए, बिकॉज आर डी शर्मा में फार्मूलाज अच्छे दिए हैं, एडवांस वर्जन से एग्जाम्पल्स अच्छे होते हैं, तो थ्रू एग्जाम्पल्स थ्रू फार्मूलाज वी कम टू अंडरस्टैंड मैथ्स इजीली। आर डी शर्मा मैथ्स इजी बनाता है मैथ्स को। सेम तरीका हमारे पास एक कुछ गाइड बुक होती है, देयर आर सम गाइड बुक फॉर एनसीईआरटी होती है ना, सो दैट in NCERT book you don't find solutions of questions, only the problems and solution questions will be there and the teachers will help you to solve that questions, है ना, NCERT मैथ्स में। तो हम बी बाई गाइड क्यों लेते हैं, बिकॉज द आंसर्स आर रिटन ऑन दैट, आंसर से लिखे। एक एग्जाम्पल ले लो इंग्लिश का, when we go to the English language textbook in class 10th, we also buy guide where the answers. So in NCERT, in English NCERT, there will be a prose or a story and questions will be there. Answer will not be there in the NCERT book. तो आंसर हम कैसे सॉल्व करते हैं? Either the teachers help us to do that, or we read the whole story and then we try to make our own answer. But we buy guide. Through that, we are able to solve the questions given in the NCERT book. तो हमें गाइड की जरूरत पड़ती है. The Brahmanas in ancient times were compared with the guide. जैसे एक ऋग्वेद है, उसमें 3 ब्राह्मणास थे, एक कमेंट्रीज था कि कैसे हम ऋग्वेद को सही से समझ सके। सामवेद हैज आल्सो डिफरेंट ब्राह्मणास। तो इन सब को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, टू मेक इजी फॉर द पीपल, तो ब्राह्मणास जो कंटेंट है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं। बट आप मेन बेसिक पॉइंट समझिए, द वैदिक लिटरेचर विच वॉज रिटेन ड्यूरिंग दिस टाइम, इट वॉज वेरी tough for the people to comprehend easily, इसलिए ब्राह्मणास लाया गया। and these are not caste, हम यहाँ पे वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, we are talking about the books, जो किताब में ब्राह्मणास थी उसकी बात कर रहे हैं। तो ब्राह्मणास समझ में क्या हुआ, it was for the people to make easy, है ना, वेदास को समझने के लिए इजी बनाने के लिए लाया गया, और हर वेदास के पास अपना अपना ब्राह्मणास है ना, तो ब्राह्मणास हर वेदा के पास है, ठीक है। सेम मैटर यहाँ पे आर्यनकाज का है। आर्यनकाज आर द बुक्स ऑफ जंगल्स, फॉरेस्ट में लिखी जाती थी। ज़्यादातर गुरुकुल कहाँ होती थी उन समय, हाँ फॉरेस्ट में होती थी। सो फॉर द स्टूडेंट पर्पस द टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ दे यूज्ड टू राइट आर्यनकाज सो दैट द वैदिक लिटरेचर कैन बी टॉट इन द क्लासेस। मतलब जो आश्रम होते थे, आश्रम में सही से पढ़ाया जाए, उनके लिए आर्यनकाज लिखा गया। एंड दिस इज ऑन द वैदिक लिटरेचर ओनली, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रुति के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, वी हैव सीन मेनी सच राइटिंग्स वर डन टू अंडरस्टैंड वैदिक लिटरेचर, ऑल राइट। तो वैदिक में हो गया, श्रुति में अभी हम धीरे धीरे फिर और भी समझेंगे व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ दिस वन। द अदर टेक्स्ट आर स्मृतिज, इसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। वन इज वेदांगना आर द राइटिंग्स, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदांगना। देन वी हैव एपिक, रामायण एंड महाभारत, विच तो गीता विल बी पार्ट ऑफ महाभारत, है ना, तो उस समय का पार्ट है। जैसे भगवद गीता है तो इट इज टेकन फ्रॉम महाभारत, तो गीता इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ महाभारत, तो इट विल बी पार्ट ऑफ महाभारत ओनली। देन वी हैव पुराण्स, 18 पुराण है, जिसमें मत्स्य पुराण इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। एंड देन वी हैव स्मृति, जैसे मनुस्मृति हुआ, देयर आर अदर स्मृतिज व्हिच इज रिटन एज ए कोड ऑफ लॉ एंड ऑल। तो इस तरह का जो सोर्सेज है, दीज ऑल सोर्सेज गिव्स अस डिटेल एनालिसिस ऑफ दैट टाइम। जब भी ये लिखी गई उस समय के सोसाइटी का पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो, ये सब बताता है सोर्सेज, है ना। तो दीज सोर्सेज आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सोर्सेज जरूरत क्यों होती है? सपोज इन हिस्ट्री, इफ यू टेक लिटरेचर, इन लिटरेचर वी डोंट फोकस मच ऑन सोर्सेज, बट इन हिस्ट्री वी फोकस ऑन सोर्सेज। एनीवन कैन राइट एनीथिंग अबाउट एनीवन, how to justify whether this particular description is true or not. If we will validate particular description through sources, and if it is proven that the following statement is true as per the sources, then this event is right or not, है ना। तो सोर्सेज इसलिए बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। इंडियन हिस्ट्री में सोर्सेज को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल फाइंड एवरी टाइम इन मेंस ऑल्सो, मेंस ऑप्शनल में सोर्सेज पे हमेशा क्वेश्चन रहता है। And prelims also this year we discussed na, there were 2-3 questions we discussed yesterday, and all these from sources only. Buddhism, Stupa is from archaeological sources, and then there was from writings, जैसे बिलहन का राइटिंग का सोर्स था।
So sources are important, all right. So in the Brahmanical literature we had this one. In the Buddhist literature we have these sources. There are two type of sources in the Buddhist literature. One is canonical and other is non-canonical. So in this canonical and other is non-canonical, there are two major differences. आप लोग differences जानते हैं दोनों में क्या difference है? No. Canonical literature जो है, it is a literature which was written and produced by the religious person for religious purpose. जैसे बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म के अंदर जब बुद्धिज्म बन रहा था, when गौतम बुद्ध was there and then the first council held, राजगिरी, second council held, है ना? तो जब ये सब councils held हो रहे थे, उस समय the religious people used to write about their own religion. So the texts which are religious in nature, written by religious person, will be canonical. And the texts which are written by non-religious purpose on the religious themes. जैसे बुद्धिज्म पे बाद में चल के, बुद्धिज्म जब कब आया, 600 BC में आया, आज हमने बात किया था, तो बुद्धिज्म आया 600 BC में. After 300-400 years, some person is writing about Buddhism, but he is independent. The particular person or she or he is independent and he is writing about Buddhist texts that will be non-canonical texts. दोनों में अंतर है, ठीक है. तो जैसे मान लो यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन आ गया दैट दीप वंश, ये जो दिख रहा है आपको, दीप वंश इज अ कैनोनिकल टेक्स्ट इन बुद्धिस्ट लिटरेचर. फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ठीक है. तो हमें ध्यान रखना है कि हु आर कैनोनिकल और हु आर नॉन कैनोनिकल. सो इन द कैनोनिकल ये जो राइटिंग्स है, अभी हम फिर इसको डिटेल में और पढ़ेंगे. अभी हम शॉर्ट में आपको हम चार्ट बता रहे हैं, ठीक है. So we understood in the Buddhist literature also there are two types of literature. In the Jain one, these are the main. They have 12 these ans are the book है. There are 12 upans. Then they have 12 Kuli Sutras, 10 Pakriyans. So these are the important sources of Jain literature. ये सारे जितने भी literature है, the Buddhist literature doesn't mean that Buddhist literature was written in 6th century BC. जब बुद्धा थे, महावीर बुद्धा दोनों जब थे, जब जैनिज्म बनिज्म डेवलप हो रहा था, इसका ये मतलब नहीं कि उसी समय लिखा गया था. इट हैड बीन रिटन थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम. 300-400 वर्ष लगे लिखने में, ठीक है. जब लिखे गए तो ऑल जितने भी सोर्स है, जैन सोर्स हो, बुद्धिस्ट सोर्स हो, इफ यू टॉक अबाउट मौर्य, इफ यू टॉक अबाउट द मौर्यन एम्पायर, है ना, मौर्यन एम्पायर की अगर बात करते हैं, तो मौर्यन एम्पायर के बारे में हम कहाँ से जानते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हमें चाहिए, बट आज से 150 वर्ष पहले वी डोंट हैव सो मच आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. वी हैव हिज इंस्क्रिप्शंस, बट नोबडी वाज एबल टू nobody was able to read that. It was undeciphered. तो हमारे पास क्या था? We had Buddhist literature, त्रिपिटका, and then other writings. We talked about Mauryas. We have Brahmanical literature called Purans. तो पुराण में मौर्य के बारे में मिलता है हमें, बट हमारे पास अर्थशास्त्र नहीं था. अर्थशास्त्र केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1900 के बाद आया. तो ये सब सोर्सेज इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. द सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सो दीज ऑल सोर्सेज विल बी टॉकिंग अबाउट मौर्य. और फिर बाद में वी डिस्कवर्ड ब्राह्मी लिपि, एंड नाउ वी कैन रीड ब्राह्मी लिपि, एंड देन वी कैन रीड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका. नाउ द सोर्सेज आर वेरीफाइड. अच्छी तरह से वैलिड हो गया कि हाँ, अशोका वाज रियली देयर इन एंशिएंट टाइम्स, है ना. जैसे वैदिक लिटरेचर में वी हैव सोर्सेज. What was happening in the Vedic literature or what was happening in the Vedic age between 1500 to 1000 BC में जो भी हो रहा था हम जानते हैं, but we do not have so much archaeological sources. We are dependent on the literature. If we come to know about the archaeological sources, we can even chronologize it. हम इससे सही से डेट भी दे सकते हैं. We don't have proper date for that period, है ना, क्योंकि archaeological sources नहीं है. नहीं तो हम अच्छे से कार्बन डेटिंग से हम फॉर्मूला निकाल लेते. So, इस तरह से सोर्सेज हमें देखने को यहाँ पे मिलती है. इन द फॉरेन लिटरेचर, इन दिस वन, इफ वी गो टू द नॉन रिलीजियस लिटरेचर, वी हैव कोर्ट अकाउंट्स एंड देन एकेडमिक वर्क एंड बुक है इसमें, जो हम अभी पढ़ेंगे. तो अभी तक कोई डाउट है आप लोगों का? एनी डाउट टिल नाउ? कॉपीराइट के लिए इसमें नहीं डाला, बट इट्स द सेम.
सब चीज तो है ही है इसमें. ओके, आई विल सेंड यू सेपरेटली. ये मैं कहीं से लिया था तो कॉपीराइट इश्यू है, so that's why I have not taken. ठीक है, but in these literary sources, all right, I will send it. So what happened? अच्छा, do you have any doubt till now? अभी तक भी आगे बढ़ते. Any doubt from online session? All right. So now we will go into the religious texts first. Let us discuss about Vedas. जब हम वेदा की बात करते हैं, okay, we discuss from some other sources. So whenever we talk about Veda, so we know Vedas are divided into 4 parts, है ना. 4 पार्ट्स में वेदा है, वो हम सब जानते हैं. इन 4 वेदा में जो सबसे प्रोमिनेंट है वो ऋग वेदा है. ऋग वेदा में टोटल कितने हिम्स हैं? देयर आर टोटल ऑफ 1028 हिम्स. इन हिम्स में जो सबसे प्रोमिनेंट है वो इंद्रा इज मोस्ट प्रोमिनेंट, है ना. इट टॉक्स मेनी थिंग्स अबाउट दैट. बहुत सारी चीजें पे बात करता है. ये जो हिम्स है, इस हिम्स में द फर्स्ट 8th 9th एंड 10th मंडल, जो पहला 8वां 9वां 10वां मंडल है, वो बाद में लिखी गई है. तब इन द लेटर फेज. बट द 2nd to 7th मंडल है, वो सबसे पहले लिखी गई थी. बाद में चैप्टर ऐड हुआ. इन सारे मंडल में कई सारे राइटिंग्स है. और इसमें जो 10वां मंडल है, द 10th मंडल, विच टॉक्स अबाउट पुरुषसूक्ता, विच मेंशन्स अबाउट वर्ना सिस्टम इन इंडिया. वर्ना सिस्टम की बात करता है. ठीक है, इस मंडल में और क्या देखेंगे, और दूसरे जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इस मंडल में, इस टोटल मंडल में इफ यू डिस्कस, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा, दे टॉक अबाउट दैट द आर्यंस आर पास्टोरल. ओके, दिस वैदिक लिटरेचर विल टॉक द आर्यंस वर pastoral, means they were agricultural based economy. Okay, they were not urbans in nature. जो आर्यन का जो सिविलाइजेशन था, द वैदिक लिटरेचर पीरियड, बट नॉट अर्बन्स इन नेचर. ऋग वेदा हमें ये बताता है. ठीक है, ऋग वेदा में जितने भी स्रोत है, यू विल फाइंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वैदिक लिटरेचर, स्पेशली मेंशन इन द ऋग वेदा, द प्रोमिनेंट गॉड्स इन द ऋग वेदा वर इंद्रा, अग्नि, सोम, है ना. These were the prominent god. In the later Vedic phase, what you find, the Brahma, Vishnu, Mahesh become prominent. Alright, तो ऋग वेदा से हमें ये सारी जानकारी यहाँ पे बेसिकली मिलती है. If you move to the other Veda, that is Sam Veda. क्या नहीं है? See, I can't mention everything in the notes, na. The class may be different and notes may be different, na. Notes is the basic point to understand for you, है ना. Notes जो आप समझो basic point है. Class will be different. मैंने क्या बोला? You will have notes in advance. अगले हफ्ते से आपको पहले और notes मिल जाएगा. So you read that notes, है ना. आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. And then we understand the events on the board through PPT and all. ठीक है. देखो, डिक्टेशन वाले पे आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट बिकॉज इट विल टेक योर टाइम आल्सो, इट विल टेक मी टाइम आल्सो. क्लास का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. वी शुड बी इंटरेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. हाँ, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन मेक योर नोन नोट्स. लाइक व्हेन आई स्पीक and if you think something is different, it is not mentioned there, you can make your notes, you can write in your diaries. This can be possible. Other point is that you can read the basic book. Alright, it is suggested now that we should also read the basic book. क्या basic book है? For ancient India, Upinder Singh or R.S. Sharma, at least you are from optional, so at least you should read Upinder Singh. So if you, even these details are not there in Upinder Singh also.
All right, so some of the details you can understand it or you can write in your diary. ये possible है ना? तो some of the details आप अपने डायरी में लिख सकते हैं या जो आपके पास जो नोट्स होगा उसमें नोट लिख सकते हैं, ठीक है? ये पॉसिबल है क्योंकि ये सब चीज़ें उपिंदर सिंह में भी नहीं है मेंशन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? तो और भी मल्टीपल राइटिंग्स आपको रिफर करनी पड़ेगी, जैसे कि पूनम दलाल दहिया की बुक है, ये सब चीज़ें हैं उन सब में, ठीक है? तो पॉइंट है दिस नोट्स विल बी सफिशिएंट फॉर योर हिस्ट्री ऑप्शनल राइटिंग। तो हिस्ट्री ऑप्शनल में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, दिस नोट्स विल बी सफिशिएंट टू दैट, है ना? वेन वी विल रिवाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हिस्ट्री ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर, वी विल ट्राई टू सी हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन। So these notes will be sufficient there, है ना? जितना notes knowledge है आपके पास, the something extra I will be discussing in that class will be sufficient, है ना? Prelims के लिए थोड़ा सा और भी factual details में हम जा सकते हैं, that RS शर्मा उपिंदर सिंह हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? Alright, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऋग वेदा में हम क्या देखते हैं? That in the ऋग वेदा the people were pastoral, agricultural थे, इनकी society agricultural based थी। In the Indus Valley civilization the people were urban in nature, है ना? इसमें क्या देखने को मिलता है? हाँ, वन मोर थिंग, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऋग वैदिक लिटरेचर, वी आर नॉट डिस्कसिंग वैदिक पीरियड। आप समझ रहे हैं? द कंटेम्पोररी टॉपिक, द प्रेजेंट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज अ लिटरेचर, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऋग वेदा इन अ ब्रीफ, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन सोर्सेज। We will also read Vedic literature in detail when we will come to this chapter. The chapter 1 is sources of Indian literature. Chapter 2 will be Stone Age. Chapter 3 will be Indus Valley civilization. Chapter 4 will be Vedic civilization. So when we will go into the Vedic civilization, we will discuss about Rig Veda and the Vedic people in more detail, है ना? उस समय आपको और भी मटेरियल्स मिलेंगे, है ना? क्योंकि ये पार्टिकुलर टॉपिक के सोर्सेज पे ही है। अभी हम यही देख रहे हैं ना कि हाउ वी आर कमिंग टू नो अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम दिस सोर्स, हम सिर्फ इस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? सो विल गेट मोर नॉलेज अबाउट वेदास एंड वैदिक पीरियड व्हेन वी विल गो टू द डिटेल चैप्टर, ठीक है? तो द फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं? ऋग वेदा है, इसमें इतने हिंट्स है, इसमें पार्टिकुलर्स है। द सेकेंड वेदा इज साम वेदा, है ना? एंड इन द साम वेदा देयर आर a total of 1810 hymns. Total कितने? 1010 hymns, and in the Rig Veda it was 1028 hymns. Do you know in PCS examination, if you go for PCS examinations, they will ask direct questions. How many hymns were there in Sam Veda, Rig Veda? हमेशा आता रहता है। मतलब they will be factual questions in the PCS examinations are all. ये जो टोटल जो 1008 हिम्स है, इन दिस हिम्स मोस्ट ऑफ द हिम्स ऑफ द साम वेदा वर टेकन फ्रॉम ऋग वेदा ओनली। साम वेदा में मतलब ज्यादातर हिम्स कहाँ से है? ऋग वेदा से है, बट इट वाज डिफरेंस वन बिकॉज इन द ऋग वेदा द नेचर ऑफ ऑल द हिम्स वर मंत्र टाइप का हिम था। किसका? मंत्र टाइप का था। बट इन द साम वेदा it was arranged into a musical terms so that people can understand about the Rig Vedic culture through musical terms, है ना? जैसे कोई भाषा है, if someone wants to say something in a mantra, the mantra is very tough to understand. जैसे गायत्री मंत्र है, याद कर सकते हैं, you can remember it, but it is tough to understand the meaning. You can write Gayatri Mantra in 2 lines, but the meaning, the comprehensive meaning of the Gayatri Mantra will be more lengthy. 10 लाइन 15 लाइन लग जाएगा आपको समझाने में इसका मतलब क्या है। So in the Sam Veda what was happening? Most of the hymns of Sam Veda were taken from Rig Veda, but in a musical annotations, musical के रूप में समझाया गया, है ना? ताकि लोग गाने की तरह सही से उसको अच्छे आवाज में सुन सके, समझ सके ऋग वेदा के बारे में, ठीक है? इन साम वेदा में भी कई सारे पार्ट्स है ना? स्पेशली आप डिविजन्स, कई सारे डिविजन्स है ना? 2 पार्ट बेसिकली है, पूर्व चीका इस पार्ट से और दूसरा है उत्तर चीका। तो दीज आर इम्पोर्टेंट। इफ यू गो इनटू द अथर्ववेदा, यजुर्वेदा पे जाएंगे, जो थर्ड वेदा है, इफ यू गो टू द यजुर्वेदा व्हाट यू फाइंड, इट हैज 40 चैप्टर्स एंड इन विच इट हैज 2000 hymns,
it has around 2000 hymns. The first had 1028, 1810, and then the third had 2000 hymns. In this 2000 hymns, it's a very ritual Veda. इसमें दो चीजें सबसे important है. It has two important part in the यजुर्वेदा. सबसे important part जो है कृष्ण पक्ष, आपने जानता होगा. एक तो है कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष. तो इसमें जाएंगे अगर इफ यू गो टू द कृष्ण यजुर्वेदा, ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो कॉन्सेप्ट है वो यजुर्वेदा से ही लिया गया है, ठीक है. बट इट इज अ डिफरेंट वन. कृष्ण यजुर्वेदा कंटेन्स मंत्र, मतलब दे हैव हिम्स ओनली, ऑलराइट. बट द अदर शुक्ल यजुर्वेदा इज रिटन इनटू अ प्रोज फॉर्म. तो क्या देखा, देयर आर टू टाइप ऑफ यजुर्वेदा. वन इज कृष्ण which is written in which terms? हिम्स मतलब मंत्र के रूप में लिखा गया है, ठीक है. एंड द दूसरा वन, द शुक्ल वन, which is written in which form? प्रोज मतलब कौन जानता है बताओ? प्रोज मतलब कविता और पोएट्री हो गया, स्टोरीज. आप 10th में पढ़ेंगे ना, प्रोज एंड पोएट्री. तो इट इज रिटन इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल एनालिसिस. तो जैसे मैंने आपको गायत्री मंत्र बोला, महामृत्युंजय मंत्र बोला है ना, तो दीज आर रिटन इन 2 lines. बट द अदर पार्ट्स ऑफ यजुर्वेदा आर डिस्क्राइब्ड इनटू अ प्रोज फॉर्म इन अ डिटेल एनालिसिस, सो दैट द पीपल कैन अंडरस्टैंड द ऋग वेदा प्रॉपर्ली. यहाँ पे जो मेन कंटेंट है वेदास में कौन है? ऋग वेदा इज अ प्रोमिनेंट एंड मेन कंटेंट upon which many of the Vedas had been written, borrowed, retained, understood, comprehended, है ना. The Rig Veda is our central point of Vedic literature, ठीक है. हाँ, देखो जो हिम्स जो है यहाँ पे 2 लाइन 4 लाइन में मंत्र के रूप में होता है. हिम्स में वर्सेस हो गया, श्लोक जिसे हम बोलते हैं हिंदी में. श्लोक सुना है ना आप लोगों ने? जैसे हाँ हाँ, तो इसमें क्या है, जाए तो जो राइटिंग से मिथ्स है. इफ यू गो टू ऋग वेदा, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स यू विल फाइंड इट इज हिम्स ओनली. पर दूसरी राइटिंग्स में आपको हिम्स मिलेंगे, वर्सेस मिलेंगे, और इन द यजुर्वेदा यू विल फाइंड प्रोज आल्सो, है ना. तो प्रोज ए मोर एनालिटिकल है, बट इट वाज आल्सो वेरी टफ फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड. दैट इज व्हाई इन द लेटर फेजेस द ब्राह्मणास वर रिटन, ताकि अब ब्राह्मणास पे हम जाएंगे तो बिबल और उपनिषद पे जाएंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली नाउ. ओके, सो यू विल फाइंड लाइक दिस वन. सो कृष्ण वन, शुक्ल वन, सो दीज आर इंपॉर्टेंट. इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थी, दैट दे हैव आल्सो कैटेगराइज्ड द कोड ऑफ लॉज. व्हाट वाज द कोड ऑफ लॉज ऑफ दैट टाइम. तो इन लोगों ने उस पर भी बात किया है ना, कि लॉज पे किस तरह से बात किया. दे हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ दैट टाइम. सो दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन यजुर्वेदा एंड दे टॉक्स अबाउट दिस. द फोर्थ इंपॉर्टेंट वेदा, दैट इज द लास्ट वन, द अथर्ववेदा, इज द लेटेस्ट वन, है ना. एंड सम ऑफ द हिम ऑफ दिस वेदा आर टेकन फ्रॉम ऋग, सम नॉट ऑल, ठीक है. जैसे फर्स्ट वाले में साम वेद में मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स वर टेकन फ्रॉम ऋग वेदा. इसमें कुछ लिया गया, बट इसमें बहुत डिफरेंट प्रैक्टिस आया. इसमें दे टॉक अबाउट पॉपुलर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कंटेन्स टोटल ऑफ 731 हिम्स इसमें टोटल, ठीक है. and if you discuss, and it has how many mantra? 5, 9, 8, 7. So if you remember, as she was telling, the mantra और हिम्स की बात कर रही थी. जो हिम्स जो है, जो श्लोक है, कितने बताए आपने श्लोक कितने वर्ड का होता होगा? If you take let's say हनुमान चालीसा, हाँ, if you go to हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा में जो the first 4 लाइन जो है, that starts from श्री गुरु चरण सरोज रज जो स्टार्ट होता है, एंड द एंड्स विद हनुमान जी पे, एंड जो बीच का जो लाइन है, सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरी. छंद, एक जो इफ यू रीड हिंदी, छंद आप लोगों ने सुना है?
हिंदी वाले लोग जानते होंगे। तो जो पोएट्री और जो छंद की जो कैटेगरी जो होती है, तो इसमें इफ यू डिस्कस देयर वर दिस मच ऑफ मंत्र, बट हिम्स कम था, हिम की संख्या कम थी। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। बट इन दिस 1200 मंथ अराउंड 25% है ना, अराउंड 25 to 30% मंत्र ऑफ द अथर्ववेदा आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा ओनली। इस मंत्र में हमें कई सारे और भी है। दे ऑल्सो टॉक अबाउट द मैजिकल फार्मूला, कई सारे फार्मूला की बात करते हैं, है ना। सो दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से वैदिक लिटरेचर वर रिटेन एंड दे गिव्स अ डिटेल एनालिसिस ऑफ दैट पार्टिकुलर पीरियड। उस पीरियड के बारे में कई सारे एनालिसिस देते हैं ये लोग, ठीक है। दे टॉक्स अबाउट सोसाइटी, और सोसाइटी में कौन बात करता है? ओनली द 10th मंडल। So most of the writing that is from 2nd to the 8th book in the Rig Veda talks about religious sphere की बात, धर्म की, how the God helps the people, है ना। इसी बेसिस पे इफ यू रिमेम्बर मॉर्टिन जो आज हमने बात किया था, जो व्हीलर जो है who studied about Indus Valley civilizations, Mortimer Wheeler, and he understood the word पुरंदर। पुरंदर जो वैदिक लिटरेचर में जो वर्ड मेंशन है पुरंदर, that means destroyer of the फोर्ट। तो जो मोहनजोदड़ो जो था, तो ये जो आर्गुमेंट है आर्यन इन्वेजन, द मोहनजोदड़ो और द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द आर्यन इन्वेजन। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन दिस assumption only that in the Rig Veda we have a word called Purandar denoted to Indra, and he is considered as a destroyer of fort. So Indra may be Aryan god who came to India from Central Asia and he destroyed Mohenjo-daro. But when we go to the Mohenjo-daro analysis, we know that the Mohenjo-daro city was divided into two parts, upper and lower parts में शहर बना हुआ था। So we do not have any evidence of skeleton है, कोई भी bones नहीं मिले हैं जो attack में लोग मरे होंगे। We don't have any evidences on the wall also that it was attacked by Aryans, है ना। तो it was a misperceptions when we come to the Indus Valley civilization. We will discuss in detail about it, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे राइटिंग्स हमें मिलता है। Then other important part of our Vedic literature is a Brahmanas. इसके बाद जो ब्राह्मणास आते हैं, तो this also talks in detail. ब्राह्मणास पे अगर जब बात करें, so this is a prose explanation of the Samhita portions and it gives many details about the sacrificial rituals and their outcome. Sacrificial ritual क्या होना चाहिए, धर्म तान क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में बहुत सारे डिटेल में यहाँ पे हमें एनालिसिस मिलता है, ठीक है। बहुत सारे ब्राह्मणास जो है इट इज ए नोटेबल अकाउंट, कमेंट्री है ऋग वेदा पे। बहुत सारे राइटिंग्स हमें कमेंट्री के रूप में हमें मिलता है। एवरी वेदा हैज सम और मेनी ब्राह्मणास, सब वेदा के पास अपने, जैसे कि मान लो इफ यू टॉक अबाउट कौशिकी एंड ऐत्री आर द ब्राह्मण्स व्हिच टॉक्स अबाउट ऋग वेदा, ऋग वेदा के बारे में बात करता है। There are other categories of Brahmans which are in the other portions as well, है ना। In the same manner as we are the Brahmanas which talks about Vedic literature, वेदा के explanation को prose forms में define करता है। In the same manner, the Aryankas are also written for the same purpose on the same things, but this was written and made for the student teacher living in the आश्रम, है ना। आश्रम में जो स्टूडेंट टीचर रहते थे उनको अपने पढ़ने समझने के लिए अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे लक्ष्मी, आपने इंडियन, यू नो अबाउट द इंडियन पॉलिटी, है ना। इंडियन पॉलिटी फॉर द यूपीएससी स्टूडेंट्स वन बुक इज इंपॉर्टेंट। कौन सा बुक है? लक्ष्मीकांत इज इंपॉर्टेंट। बट इफ यू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड द सुभाष कश्यप की भी बुक है, डीडी बासु की भी बुक है। सो फॉर द टेक्स्ट बुक, दीज आर द टेक्स्ट बुक, बट इफ यू गो टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी, their syllabus is different, so they do not read Lakshmikant, they read like Sunil Kumar, जो सुनील किरानी की राइटिंग है, आइडिया ऑफ इंडिया, विपुल सिंह की राइटिंग है। So the people in the different university, their job is different, their syllabus is different, so they will read the different book written by the political scientist, but Lakshmikant is not a political scientist, है ना। तो उन्होंने अपने पर्पस से लिखा है। Brahmanas, Vedas and Aryankas were written for the same type of purpose for the different type of people. तो जो वैदिक लिटरेचर था ऋग वेदा वर रिटन फॉर एवरीवन, बट इट वाज टफ फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब ये लिखा गया, अब हम देखेंगे कब लिखा गया था, बट व्हेन दिस वर इन द प्रैक्टिस इट वाज, जब आप सुनते भी थे या याद भी करते थे, इट वाज टफ फॉर द पीपल टू रिमेंबर समथिंग।
क्योंकि वो इतने कॉम्प्लेक्स टर्म्स में था, इसलिए द अरेनकाज वर रिटन बाय द टीचर्स फॉर द स्टूडेंट्स, है ना, टीचिंग पर्पस के लिए, टीचिंग डिलीवरी पर्पस के लिए लिखा गया। और स्पेशली अभी हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। सो इस समय क्या हुआ कि इन ऑल दिस थिंग्स वर हैपनिंग, अभी हम आपका नाम क्या है? वत्सना। सो वी विल डिस्कस व्हेन इट वाज रिटन एंड हाउ इट वाज रिटन, हाउ मच टाइम इट टुक टू राइट, है ना। अभी स्लाइड बनाया हूं मैंने, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर मेनी टाइप ऑफ अरेनकाज, जैसे इफ वी हैव ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, वी हैव अरेनकाज लाइक ऐत्रेय अरेनकाज है हमारे पास, तैत्रीय अरेनकाज है, मैत्रेयानी अरेनकाज है। So these are the types of arenkaj which are opposed to the sacrifices and rituals which are mentioned in the Vedic literature also. मतलब because these were made for the student centric, it was made for the teaching purpose. So in some sense, many of the arenkaj writings are opposed to what? Sacrifices and ritual, and rather they emphasize on the meditation terms, है ना। तो इसमें स्टेटमेंट बन सकता है कि most of the writings of Arenkaj focus on rituals, customs and culture in ancient time. ये statement क्या होगा? It will be false because most of the Arenkaj writings do not focus on ritual. Instead of rituals, they focus on meditations. तो meditations पे meditations moral values पे ध्यान देते हैं सब चीजें। तो ये हमारा main Arenkaj। If we go to the other parts, especially the Upanishads, है ना। So Upanishads were written during the same time, Vedic literature time पे भी Upanishads लिखे गए हैं, okay. So what was happening in the Upanishads? There are total 108 Upanishads, है ना, in which 13 are prominent, 13 Upanishads बहुत prominent है। इन सब में these all people focus on Atma and Brahman, okay. And Upanishad मतलब simple है, that Upanishad simple मतलब होता है that some people, मतलब जो वर्ड है उप और निषद जो बना है वर्ड, where the some people will be listening, है ना, he will sit down near to some teacher, उनके साथ बैठेंगे and then he will get the sacred knowledge provided by him, the teacher will provide, तो सुनेंगे, तो यहाँ पे याद करेंगे, तो ये सब चीजें सुनने के दृष्टिकोण से चलता था। तो these things are important. If you remember the word called सत्यमेव जयते, it is a very famous word, है ना, कहाँ पे यूज होता है वर्ड? मूवी भी आता है, कोर्ट के अंदर, और हाँ, तो दिस वेरी फेमस वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मूवी, तो अलग चीज है, दैट शो आता था, है ना। इसका मतलब क्या होता है? तो दिस वेरी फेमस टेक्स्ट यूज्ड इन एवरीडे लाइफ ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। So it was a part of that 18 उपनिषद में से जो एक इम्पोर्टेंट उपनिषद है, दैट इज मुंडका उपनिषद, वहां से टेक्स्ट लिया गया है, ठीक है। तो इन सब राइटिंग्स में हमें देखते हैं कि किस तरह से टेक्स्ट वगैरह लिखे जाते थे। तो वन कैटेगरी ऑफ दिस टेक्स्ट वाज, तो एक तो हो गया हमारा वैदिक लिटरेचर्स, इनमें देवर, सो वैदिक लिटरेचर का मतलब सिर्फ वेदा नहीं होता है। व्हेन वी डिस्कस अबाउट वैदिक लिटरेचर, ऑल दिस टेक्स्ट विल बी कमिंग अंडर दैट ओनली, ऑल 4 वेदास, ब्राह्मणास, Arenkaj and Upanishads will be part of Vedic literature, है ना, क्योंकि these all writings are based and related to Vedas only, ठीक है। इस तरह से हम समझते हैं। If we go to the other writings which were made for the remembering purpose, है ना, which was to be remembered, उसमें सबसे important है वेदांगाज, alright। तो जो वेदांगा है, this was also written for the Vedas only, एक कोई अलग राइटिंग्स नहीं है। दिस वाज रिटन टू अंडरस्टैंड वेदास प्रॉपर्ली, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं, स्टूडेंट्स है, दे कैन अंडरस्टैंड वेदास प्रॉपर्ली। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, देयर आर 6 वेदांगास, है ना, टोटल वेदांगा की कैटेगरी 6 है। इनमें से जो सबसे पहला शिक्षा वेदांगा, ओके, अच्छा, दिस ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैव नो नोट्स, especially this शिक्षा वेदांगा deals about the मंत्र, है ना। Suppose
how to pronounce mantra properly, because the months are given in the Rig Veda. तो हम मंत्र को सही से प्रोनाउंस कैसे करें. So this is a treatise on the way in which the people should pronounce मंत्र. जितने भी मंत्र है उसको प्रोनाउंस कैसे करें, उस सब की डिस्क्रिप्शन किसमें दिया गया है, शिक्षा वेदांगना में. ठीक है, इट टॉक्स अबाउट मंत्र, है ना. द अदर इंपॉर्टेंट इज, जो दूसरा पार्ट है वो है कल्प. जो कल्प है, कल्प वेदांगना, दिस विल टॉक अबाउट रिचुअल्स, ड्यूटीज एंड संस्कार. जो भी ऋग वेदा में वाटिवर, मतलब देयर आर 1028 हिम्स इन द ऋग वेदा, एंड वाटिवर रिटेन रिलेटेड टू ड्यूटीज, कल्चर एंड संस्कार, इन सब रिलेटेड में कोई भी चीज ऋग वेद में लिखा हुआ है. सो दिस कल्प वेदांगना हैज रिटन अबाउट दैट इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर. इन्होंने बताया कि हाउ द पीपल शुड वर्क लाइक दिस एंड ऑन, है ना. इस तरह से डिफाइन किया गया है चीजों में. जो थर्ड है, जो आप देखेंगे, व्याकरण वेदांगना. तो व्याकरण इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. व्हेन यू रीड इंग्लिश, जब इंग्लिश हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो इंग्लिश के लिए क्या जरूरी पड़ता है, ग्रामर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट हाउ टू प्रोनाउंस समथिंग, हाउ टू राइट अ प्रॉपर सेंटेंस एंड ऑल. सो दिस व्याकरण वेदांगना डील्स विद द ग्रामर एंड द साइंस ऑफ लैंग्वेज, है ना, कि प्रॉपर तरीके से वैदिक लिटरेचर वगैरह उस समय हाउ द पीपल शुड प्रोनाउंस प्रॉपरली, संस्कृत कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ लैंग्वेज एंड ऑल. सो दिस व्याकरण वेदांगना डील्स विद दैट थिंग्स, है ना. अदर इंपॉर्टेंट इज अ निरुक्ता विच डील्स विद इटिमोलॉजी, स्पेशली जो इटिमोलॉजी जो एक्टिविटीज है इस पर ध्यान देते थे. उसमें छंद है, जैसे जितनी भी कविताएं बनती है, अब हिंदी में पढ़ेंगे, छंद आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ पोएट्री, प्रोज, इन सबके इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो हाउ टू विद दिल दैट, कैसे लिखेंगे. अब जब भी कोई जैसे शायर सुनते हैं, तो शायर में क्या होता है, कोई भी शायर जो सुनते हैं, लास्ट कंटेंट और फर्स्ट लाइन का लास्ट कंटेंट सेम दिखता है, जो टोन होता है, तो वो चीज़ें जरूरी होती है. जो छंद वो डील करता है. वेन यू स्पीक हनुमान चालीसा, you will find that how हनुमान चालीसा is made and how it is in the one line manner में कैसे लिखी गई है, इतनी लंबी हनुमान चालीसा. So these things are important. So Chand Vedangana deals with this, and the last Vedangana is Jyotish one. Jyotish was very much important because Rig Veda talks about Indra. Indra का क्या ड्यूटी था? The duties of Indra was rain. He is related to that. Sun का light, जो sun की जो ड्यूटी है, and then there are a lot of gods that deals about that. They also deal about the time period. Space की बात करेंगे. They will talk about the calendar, है ना? The night is happening, day is happening, the seasons have been changing. So Rig Veda contains all of these details. So especially the Jyotish Vedangana will deal with the sky things, जो sky जो चीजें हो रही है आकाश में, है ना? ज्योतिष, they will talk about ज्योतिष activities, है ना? तो एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे. तो they were not only dependent on this, astronomy was very much important for them. So इस तरह से what we see in ancient India, these 6 Vedangana played a very important role in this category. ठीक है? For online, I will just repeat these 6 Vedangana name. One is Shiksha Vedangana, other is Kalp Vedangana, Vyakaran, Nirutta, Chand and Jyotish. Okay, these all things are very much important. In the Jyotish Vedangana, do you know, Jyotish Vedangana is a very famous book and we have about 400 sloks written in Jyotish Vedangana only. Okay, तो वेदांगना हमारे फर्स्ट कैटेगरी है स्मृति में. The second type of remembering book which was written at that time were epics. Epic हमारा दूसरी राइटिंग्स है, महाकाव्य. In this epic writing, if we go to the first one, what is the first name? Ramayana, which is very popular event in ancient Indian history. About Ramayana, we have a debate whether it was true or not, whether Ramayana is a historical event or not. We always debate this topic, है ना? हम डिबेट करते हैं कि रामायण का एज क्या होना चाहिए. Like we are discussing about Vedangana, we are in the age of Vedic literature. So whether Ramayana happened before Vedic culture or whether Ramayana happened after Vedic age. अगर हम एज पे जाते हैं तो ठीक है. अभी हम जो डेटा देखेंगे कब ये सब चीज़ लिखी गई है, तो हम डिटेल में आएंगे कब लिखी गई. बट द पॉइंट है, if we go to the factual details,
रामायण के बाद हमारे पास बहुत सारे फैक्चुअल डिटेल्स हमारे सामने आते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है रामायण के बाद, इन द बिगिनिंग रामायण हैड अबाउट 24,000 स्लोथ्स, 24,000 स्लोथ था रामायण के पास, विच इज डिवाइडेड इनटू 7 खंड। द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ राम का बर्थ हो गया, जिसे हम बाल कांड बोलते हैं, अयोध्या कांड है ना, अरण्य कांड विच वाज इन द फॉरेस्ट में जो चीजें, किष्किंधा हो गया, लंका कांड हो गया, एंड देन उत्तर कांड। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट और जो 7th वाला जो कांड है, द फर्स्ट बाल कांड एंड द 7th वन द उत्तर कांड। उत्तर कांड ऑफ द रामायण डील्स विद लव एंड ट्रुथ का जो स्टोरी है, द सीता गिव्स बर्थ ऑफ 2 चिल्ड्रेन है ना, तो उसकी स्टोरी डील करता है। तो ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों जो पार्ट है, फर्स्ट एंड द 7th पार्ट वर एडेड इन द लेटर पीरियड है ना, लेटर पीरियड में ऐड हुआ। अब दूसरी जगह जाएंगे तो शुरू में आप इसमें देखेंगे जब रामायण बना था, द फर्स्ट टाइम द रामायण वर रिटेन इन अ सीरीज ऑफ ईयर्स। 1 साल में, 1 दिन में या 10 साल में रामायण नहीं लिखा गया था। द टोटल रामायण को कंपोजिशन करने में करीबन 400 से 500 वर्ष लगते थे, ईयर्स। जी, आपने ईयर बोला कि इतना दिन रामायण जिया, ठीक है, राम। So the Ram events happened for a year, but these texts were not written. ये टेस्ट हम कौन सी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? स्मृति। The people used to remember the event, it was not written. So I am talking the people who had written this. जैसे रामायण किसने लिखा? तो उन्होंने तो 10 दिन या 1 महीने में लिख दिया होगा, है ना। अगर वाल्मीकि, मतलब वो कितने दिन जिए होंगे? ही मे हैव रिटन विद इन अ ईयर। आप 1 साल में तो आराम से एक किताब लिख सकते हैं। बट अभी हम एक आपको मैप बताएंगे, देन हम क्रोनोलॉजी से समझेंगे कब लिखी गई है। बट दे टूक अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट। एक डिबेट है कि उन्होंने लिखा, हम आस्था पे नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू योर बिलीव्स, है ना, कि हिंदू धर्म का बिलीफ पे नहीं जा रहे हैं, वी आर गोइंग इनटू द हिस्टोरिकल फैक्ट। से रामायण लिखने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। पर हम यहाँ पे फैक्ट्स पे जाते हैं। जब शुरुआत में जब रामायण लिखी गई थी, इन द बिगिनिंग इट हैज ओनली 6,000 वर्सेस। 6,000 था, बाद में कितना हो गया? 12,000 एंड देन लेटर ऑन, तो देन बिकम 12,000। सेम चीज महाभारत के साथ हुआ है। इफ यू डिस्कस द महाभारत, इन द बिगिनिंग द महाभारत हैड ओनली 8800 स्लोथ्स। महाभारत के पास सिर्फ मतलब 8800 स्लोथ थे, विच वाज नेम एज जय संहिता। सो इन द बिगिनिंग द महाभारत नेम वाज जय संहिता, देन its sloth increased to 24,000 and then finally to 1 lakh. In the contemporary time the Mahabharata we have, it has 1 lakh sloths, और इसे हम क्या बोलते हैं लास्ट में? महाभारत। तो महाभारत टर्म इज एडेड इन अ वेरी लेटर टाइम। उस समय जो इवेंट्स हुआ उसे महाभारत नहीं बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, फर्स्ट वर्ल्ड वार। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैपन इन 1914 to 18। तो उस समय तो लोग उसे फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं बोलते होंगे ना, है ना। द पीपल स्टार्टेड कॉलिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार आफ्टर, और सेकेंड वर्ल्ड वार भी बाद में बोला गया। तो पॉइंट है, इवेंट होने के बाद उसे नाम दिया जाता है। सो पीपल हैव नेम दिस, जैसे रामायण है, वट एवर वॉज हैपनिंग इन द रामायण पीरियड, रामायण टाइम को हम रामायण क्यों बोलते थे? द पर्सन हु हैज रिटन अबाउट राम, है ना, इट इज ए स्टोरी ऑफ राम, दैट इज कॉल्ड रामायण। तो बाद में नाम पड़ा। सो ये सब जो चीजें उस समय हमें चल रही देखने को मिलती है, दिस रामायण एंड देन महाभारत। But through historical point, they give many such analysis about Indian culture, society, customs, traditions, and polity also. In polity, रामायण से क्या पता चलता है? There was a person called Dashrath, his father, he was ruling अयोध्या। उसके बाद महाभारत से पता चलता है कि पांडव was ruling during this region. We have some evidence, we have some cities named from महाभारत, जैसे कि कुरुक्षेत्र is one such, और हस्तिनापुर, मथुरा, कौशाम्बी, एंड देन दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ है। सो वी कम टू नो अबाउट द ज्योग्राफिकल लोकेशंस थ्रू रामायण एंड महाभारत। इन रामायण वी कम टू नो अबाउट, जैसे किष्किंधा है, वी कम टू नो अबाउट श्रीलंका, जहाँ रामेश्वरम, जहाँ राम जा रहे थे, वी नो अबाउट दैट, वी नो अबाउट अयोध्या, है ना। अयोध्या इज अ सिटी जहाँ पे
यहाँ से सीता थी. So we know about many such facts and details from these sources also. But the point is how much it is historically corrected. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इस पे अभी हम नहीं जाते हैं सब चीजें. ठीक है. तो इस तरह से हम देखते हैं that in the स्मृति कैटेगरी we have वेदांगाज एंड देन वी हैव इपिक. और 2 इपिक सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, रामायण एंड महाभारत. उसके बाद कैटेगरी आती है पुराण की. द पुराण्स वर ऑल्सो रिटन. पुराण सिर्फ बाद में लिखी गई. जब पुराण लिखी, कितने पुराण? देयर आर टोटल ऑफ 18 पुराण. ओके, कितने हैं? एक और ऐड आपने किया है क्या? तो देयर आर 18 पुराण. अगर आप 18 पुराण में जाएंगे, द मत्स्य पुराण इज वेरी मच ओल्ड. मत्स्य पुराण आपने देखा है? मूवी वगैरह सीरीज देखा है? नो? हैव यू वॉच्ड एनी सीरीज, एनी टीवी सीरीज ऑन पुराण? हाँ, देखा है. कुछ तो देखा होगा. क्या देखा है? हाँ. एंड देन कुछ और पुराण सुना है आप लोगों ने? वेयर द विष्णु टेक्स इनकारनेशन एंड ही बॉर्न्स इनटू अ मैन. और दूसरी पुराण? हाँ, जैसे ब्रह्म पुराण. देयर इज ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण. देयर आर द सीरीज ऑफ दिस इवेंट्स ऑन टीवीज ऑल्सो. यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, बट आई डोंट सजेस्ट यू टू वॉच दैट. बट द पॉइंट इज दिस ऑल स्टोरीज, दिस ऑल पुराण्स टेल्स अस द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूरा बताते हैं. नारद पुराण है, अग्नि पुराण है, भविष्य ब्रह्म पुराण है, लिंग वर पुराण है, बमन पुराण हो गया, एंड देन गरुड़ एंड ब्रह्मांड पुराण. सो दीज आर द पुराण्स. इन सब पुराण में भी उप पुराण भी है. उप पुराण मतलब सब कैटेगरीज ऑफ पुराण है ना. ये सारी चीजें हमें एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलता है. इन सब के अलावा स्मृति में, स्मृति नाम का टेस्ट है. तो स्मृति इज अ डिफरेंट थिंग. स्मृति वाज अ सम टेस्ट विच वाज रिमेंबर. एक कुछ ऐसे टेक्स्ट भी एंशिएंट इंडिया में है जो स्मृति नाम है. जैसे कि मनुस्मृति है ना. मनुस्मृति हो गया, यज्ञवाल्क्य स्मृति, नारद स्मृति हो गया, प्रसर स्मृति हो गया, बृहस्पति स्मृति हो गया, है ना. So these are the Smritis which also talks about. So these Smritis was written, most of these Smriti was written during a Gupta time. गुप्ता टाइम चल रहा था, तब ये सब स्मृति वगैरह लिखी गई है. उसमें सिर्फ श्रुति में क्या कि लोग सिर्फ सुनते थे. नहीं, ये जॉब किसका था? द ब्राह्मण ऑफ दैट क्लास. सारा ब्राह्मण नहीं, किसी पार्टिकुलर ब्राह्मण के टास्क होता था. दोज हु विल बी इन द आश्रम, सो दे विल गो समवेयर एंड देन ही विल स्पीक एंड द पीपल विल लिसन. उनको और करने से कोई मतलब नहीं था. तो सेकेंड कैटेगरी जब चीजें आया, जैसे रामायण आ गया और वेदांगना आ गया. तो वेदांगना क्यों जरूरत था? वेदांगना में क्या है? बहुत सारे टीचिंग है. हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू स्पीक, मतलब प्रोनाउंस कैसे करे सही से. सो यहाँ पे याद करने वाली चीजें आ गई. सो रामायण जो लोग क्या किए, सुनते नहीं थे. द पीपल इज टू रिमेंबर करते थे ना. और बाद में चल के ये सब चीजें लिखी गई, है ना. उस पर हम थोड़ा बात करते हैं कैसे लिखी गई. If you see this slide, it is visible to everyone. So this is a 0 AD. जो अभी क्राइस्ट का जो जन्म हुआ वो 0 AD है, 0 है. And this period will be AD and the back period is BC, before Christ. ठीक है. And these are the lines where the following texts were composed and written. इन सब लाइन में लिखी गई टेक्स्ट. The first text we have Vedic texts which were started to be made in 2000 BC. The first text started to be written or composed in 2000 BC, before the time of Vedic civilization. It started from 1500. अब सवाल है 1500 में तो Vedic civilization आया है, 2020 में कैसे लिखा जाना शुरू हुआ? कोई सवाल है आप पे? क्या कैसे है? Do you have doubt? Why not? The Vedic civilization started in 1500 BC, and here I am saying that the writing process, composing process of the Vedic literature started in 2000 BC and completed by 500 BC.
कंप्लीटेड बाय 500 BC, ये 500 BC है, ठीक है। सो 500 BC कैसे स्टार्ट हुआ, कोई डाउट नहीं है आपका भाई? क्या डाउट है? थैंक यू। हाँ अच्छा, आपको पीछे आप लोग क्या कर रहे हैं? हेलो, कुछ डाउट है आप लोगों का? तो आप ही समझाओ कैसे। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वैदिक सिविलाइजेशन जो इंडिया में है, द वैदिक सिविलाइजेशन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 1500 BC, और राइटिंग प्रोसेस का बोल रहा हूँ स्टार्ट हो गया कंपोजिशन प्रोसेस You are not listening properly. The Vedic text started to be composed after 2000 BC and completed by 500 BC. मतलब no. The writing process of Vedic literature but completed by 500 BC. मतलब 500 BC आते आते बोलना जरूरत नहीं था। पहले the people used to listen and remember, but by the time of 500 BC, these activities were completely written. मतलब लिख दिया गया था, उसके बाद सुनने और बोलने की जरूरत नहीं थी, because the things were written now. पहले लिखा हुआ नहीं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ इसके लिखने की प्रोसेस 2000 BC में स्टार्ट हुआ, और आर्यन का जो डेट है, आर्यन सिविलाइजेशन जो वैदिक सिविलाइजेशन का डेट है 1500 BC। तो आपका डाउट बता रहे थे, ये डाउट इसलिए है because this date, this chronology of 1500 BC is given by मैथ्स म्यूलर, 19th सेंचुरी में दिया है। तो ये भी सकता है ना कि हो सकता है इनका जो वैदिक सिविलाइजेशन का जो एज है वो पहले हो, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो हमारा जो टेक्स्ट अवेलेबल है पुराना, उसके अनुसार डेटिंग के अनुसार हमने डिफाइन किया है कि हमारा डेट ये हो सकता है। इवन देयर इज अ डॉट इन दैट, मतलब इससे पहले भी हो सकता है ना। क्योंकि अब जब स्कूल जब कॉलेज में जाएंगे, व्हेन यू गो टू रीड प्रॉपर हिस्ट्री, वहाँ पे डिबेट है, द पीपल अंडरस्टैंड देयर, बट हियर इन द यूपीएससी वी हैव द सेम मटेरियल रिटन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, है ना, इसलिए इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। हाँ, सो आप समझ रहे हैं पॉइंट्स? हेलो स्टूडेंट्स, हाँ, तो द पॉइंट है, मैं इनको बोल रहा हूँ, ऑनलाइन भी है ना लोग। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो द बाय द टाइम ऑफ 500 BC द वैदिक टेक्स्ट हैव बीन रिटन। जो सवाल था महाभारत या वेदा जिसने भी लिखा है वन इंडिविजुअल पर्सन ने, तो ही मे हैव रिटन विद इन हिज लाइफ टाइम, जो उनका लाइफ टाइम रहा होगा, बट हिस्टोरिकल सोर्स क्या बोलता है, वन पर्सन कांट राइट बिकॉज इट वाज अ प्रोसेस। इस प्रोसेस में पूरा लिखा गया। हाँ, जैसे वेदा श्रुति था, तो जो पहले बार किसने लिखा होगा ना, जैसे इफ यू टॉक अबाउट कुरान, देयर में भी इस पे डिबेट है कि अल्लाह ने इसे दिया है, बट वन पर्सन में हैव रिटन इट, है ना। सेम तरीके से जो वेदा का जो पार्ट है, किसी ने लिखा होगा। इफ वी टॉक अबाउट मॉडर्न एम्पायर, तो वन पर्सन हैज नॉट रिटन अबाउट मॉडर्न एम्पायर, द मेनी पर्सन इन अ सेंचुरी हैव बीन राइटिंग अबाउट मौर्याज थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। लास्ट में बन के RS शर्मा ने चैप्टर ले दिया मॉडर्न एम्पायर, है ना, इस बुक में। So through a series of time, the history had been written. So we see by the time of 500 BC, the Vedic texts have been completed. Vedangana, which was a Smriti text, it is completed by 200 BC. All right. Mahabharat and Ramayana, this was completed by 300 and 400 AD. तो रामायण बस कंप्लीटेड। तो रामायण को बनने में इतने साल लग के देखा आपने, रामायण कहाँ पे था? हाँ बताओ। इज इट नॉट विजिबल टू यू? दिस स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो माइनस इज BC, एंड दिस साइड द लेफ्ट इज BC एंड राइट इज AD. सो रामायण बस कंप्लीटेड बाय दिस टाइम. इफ यू टॉक अबाउट वैदिक लिटरेचर, दे डू नॉट मेंशन अबाउट रामायण, बट रामचरितमानस में जाएंगे तो दे डिस्कस अबाउट वेदास। इससे क्या पता चलता है? इफ यू गो टू द रामचरितमानस, किसने लिखा था?
So they mentions about Vedic literature. वेद की बात होती है, हाँ. And the Vedic literature do not talk about Ram. So what do you understand from this event? हाँ. रामायण वाला बाद में इवेंट हुआ हो, ठीक है. And now imagine about the supernatural power in during रामायण टाइम मेंशन इन दिस. आपने रामानंद सागर का रामायण देखा है ना, जो टीवी पे आती थी. हाँ, तो इफ यू टॉक अबाउट हिम यू फाइंड ना देयर इज सुपरनेचुरल पावर. राम का तो मान लो नहीं है, उनको उड़ने की शक्ति नहीं थी. रावण के पास तो था, है ना, पुष्पक विमान एंड ऑल. So the point is that if the Ramayana happens after Vedas, वेदा में उस तरह का सुपरनेचुरल पावर नहीं दिखता है. दे टॉक अबाउट पावर, बट जो एक्टिविटीज हो रहा हो किसी इंडिविजुअल ह्यूमन के पास ऐसा पावर हो नहीं दिखता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट रामायण जो वैदिक लिटरेचर के बाद हुआ हो, मतलब वैदिक लिटरेचर में कंपोज्ड इन 500 BC, मतलब रामायण इसके बाद हुआ हो, तो रामायण के कंटेम्पोररी में कौन थे इंडिया में? बिट आर्यन तो पहले आ गए थे, बुद्धा एंड पॉलिटिकल लीडर बिंबिसार, अजात शत्रु एंड ऑल. तो इसमें हिस्टोरिकली सवाल उठता है ना, हो सकता है रामायण पहले हुआ हो. मे बी. Since we do not have a solid archaeological evidence, चलो ये मानते हैं. All right. If you go to the geographical map, you were not yesterday, you were not here. So if you go to the geographical map, what do you find? Hello, during the time of later Vedic period, and before the time of 16 Mahajanpad, the political map, the political settlement of the people, the political settlement of the population were limited to northern India only. North में northern, south में या central में तो जा ही नहीं रहे थे. And we have evidences from Central Asia, Central India. तो इसमें बहुत सारे डाउट, या फिर पहले हुआ हो, but the debate will be there. But the point is that this Ramayana tells us a lot. हमारे सोसाइटी जब रामचरितमानस लिखी जा रही थी, he mentions about the details ना, Indian details बात करते हैं, and we have many evidences. क्योंकि in the world there are more than hundreds of versions of Ramayana. राजस्थान में डिफरेंट वर्जन चलते हैं, इंडोनेशिया में डिफरेंट वर्जन है. दे टॉक्स अबाउट मेनी स्टोरीज अबाउट रामायण. ठीक है, तो इस तरह से हाँ नहीं पता. खत्म 500 में राइटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया. मतलब वी हैड वेदा इन 500 BC इन रिटन फॉर्म. ठीक है, वेदा जो है, जब वेदा लिखी गई, वेदा इज अ टेक्स्ट है ना, एक किताब है जो लिखी गई आर्यंस द्वारा. ठीक है, मानते हैं. बट उनका जो कल्चर था, वैदिक कल्चर जिसे वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसका एक टाइम पीरियड है. जैसे मान लो अभी हम किसके राज में रह रहे हैं? नरेंद्र मोदी के राज में रह रहे हैं. कितने साल से? 2014 से मान लो 6 या 9 साल से हम वी हैव अ डेफिनिट chronology that we have been living under this leadership for 9 years. In the same manner, we have a chronology according to Max Muller that the Vedic people lived between 1500 to 1000 BC. मतलब वैदिक पीपल, मतलब जो वैदिक का जो एज था, क्या था? These people lived between these years. After this year, so this is a Vedic civilization, and then after 1000 to 600 BC, it is a later Vedic period. वैदिक पीरियड में, मतलब वैदिक पीरियड में जो भी चीज मेंशन है वैसा चीज चल रहा था इस टाइम पे, बट लेटर वैदिक पीरियड में सब चीज चेंज हो गया.
सोसाइटी चेंज हो गया, रिलीजियन चेंज हो गया, क्योंकि पहले इंद्र प्रोमिनेंट थे, बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रोमिनेंट होने लगे। कल्चर चेंज हुआ, कास्ट सिस्टम फ्लरिश हुआ, वुमेन का स्टेटस चेंज हो गया। सो व्हेन वी विल डिस्कस द वैदिक इन अ चैप्टर, वी विल डिस्कस इन डिटेल, है ना। आप समझ में आ रहा है, इनकी सभ्यता इस टाइम पे थी, बट इनका जो टेक्स्ट है जो लिखा गया दोनों अलग अलग है। राइटिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस एंड द लिविंग पीरियड इज अ डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। दिस टाइम पीरियड इज गिवन मैथ्स, है ना। इससे पहले लोग मानते थे कि इट्स टाइम पीरियड इज अबाउट 4500 BC, मतलब इवन बिफोर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। पर since we do not have so much solid evidence, so we can't say anything. But the historians have been working. In the future, anything can be changed. कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो रामायण आपने देखा, पुराण was completed by the time of 600 AD. एक तो है, देखो, एक तो मिथोलॉजी भी जानते हो ना, मिथोलॉजी क्या होता है, मिथ, हाँ, मिथ वाला चीज है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट कुछ हिस्ट्री में है तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। एक स्टोरी आपने सुना है that there was a priest, there's a Brahman priest who came home and telling his wife कि उसके मुंह में मुर्गी का पंख आ गया है ना। तो उसकी वाइफ दूसरे को बोलती है, मतलब मुर्गी के पंख का बाल आया था, तो उसकी वाइफ दूसरे पड़ोसन को बोलती है पंख आ गया। दूसरा आदमी बोलता है ये आ गया। तो मतलब द अदर पर्सन से द ब्राह्मण इज ईटिंग, मुर्गी खा रहा है। स्टोरी मतलब एक छोटे बाल से ईटिंग प्रोसेस पे आ गया था। ये स्टोरी फेमस है इंडियन कल्चर में। हो सकता है छोटा सा इवेंट रहा हो, क्योंकि द वे इवेंट इज नरेटेड, अच्छा हाँ, हर बुक में ऐसे नरेशन नहीं है। इफ यू वॉच रामानंद सागर एपिसोड, इट्स अ वेरी नरेटिव थिंग। जिस तरह से उड़ रहे हैं, तीर जा रहा है, एंड तीर हैज डिफरेंट टाइप ऑफ पावर। जैसे गन में क्या होता है, गन में बुलेट होता है, एंड बुलेट में है पावर, जितना उनका क्षमता उतना अटैक करेगा वो, बट दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स, है ना। तो एक तो पॉइंट ये है आपका, तो इस हिसाब से जैसे इन्होंने बोला, देयर में हैव अकर इवेंट, राम एक इंसान होंगे, है ना। मे बी इंकारनेशन भी हो सकता है, इवेंट होगा, उस इवेंट को थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम नैरेटिव दिया गया है। और अभी का जो रामानंद सागर है, इट्स अ वेरी डिफरेंट। इफ यू रीड रामचरितमानस तो बहुत डिफरेंट है, द ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे वो भी डिफरेंट है। तो टाइम पीरियड पे अगर आप जाते हैं तो मुझे लगता है अगर ये हुआ होगा, अगर वास्तव में हुआ होगा तो ये और भी पुराना है, वैदिक से भी पहले हुआ होगा। इफ यू गो टू द राम सेतु, इफ यू बिलीव दैट राम सेतु इज अ रियल इवेंट, रियल मॉन्यूमेंट है, और माउंटेन जो अपना राम सेतु है साउथ इंडिया में, अगर आप उसको सही में मानेंगे तो उसका जो क्रोनोलॉजी है तकरीबन 5600 मतलब 5000-6000 BC पुराना है। तो as we know about the Indus Valley civilization, that the Indus Valley people existed during the time of 2000 BC, मतलब 2300 से 1700 BC के टाइम पे the Indus Valley people used to live in northwest India. But after 2000, मतलब after 1500, we had no knowledge about Indus Valley people. और इनका नॉलेज हमारे पास कब पता चला? 2000 नहीं, 4000 वर्ष बाद। मतलब in 2000 BC they used to live, and in 1920 we come to know that there were some type of people called Harappan people, है ना। They were very much urbanized. They had trade with Mesopotamia. International trade था उनका। तो ये हमें 4000 वर्ष बाद पता चला उनके बारे में। तो maybe the remains may have been underground. In the future, the time may come where the historians may find we have evidences from Ramayana. कुछ मिल सक जाए वहाँ पे, and then we will have the real story as we have a story of Indus Valley civilizations, है ना। तो इस तरह से एक्सकैवेशंस वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि उस समय राइटिंग्स होते नहीं थे। अभी क्या होता है, सब चीज़ हम लिख लेते हैं। इन द टाइम द पेपर वाज नॉट देयर, नथिंग वाज रिटन, inscriptions are not found. Like in Bhimbetka, the people of the Paleolithic period gives example ना। द भीमबेटका पेंटिंग में अगर जाएंगे, भीमबेटका की पेंटिंग देखेंगे, भीमबेटका कहाँ पे है? इट इज इन मध्य प्रदेश नियर भोपाल। इन दैट भीमबेटका द पेंटिंग मेंशंस मेनी सच एनिमल्स, कई सारे उस समय के एनिमल्स के बारे में बताते हैं। मतलब
वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू द पेंटिंग द पीपल वर हंटर एंड गेदरर्स, है ना। हम वही चीज़ पेंटिंग बनाते हैं ना जो हमें चाहते हैं, जो हम करते हैं, है ना। तो द सोर्सेस टेल अस, तो लाखों साल पुराना चीज़ें हमें ये बता रहा है। तो मॉडर्न में हो सकता है हमारे पास मिले, बट होता है शहर बनता है बिगड़ता भी है ना। आपने देखा होगा, इफ़ यू गो टू दिल्ली, अगर आप सीपी में जाएंगे तो सीपी का जितने मार्केट है, कितना साल पुराना मार्केट है, तकरीबन 70 और 2 90 साल पुराना मार्केट है। टाइम आएगा जो उजड़ जाएगा, वो नए चीज़ बनेंगे वहाँ पे। तो इन हिस्टोरिकल दीज ऑल थिंग्स विल बी चेंजिंग, ठीक है। आपने तमिल लिपिक्स देखा, ये सब टाइम पीरियड इस समय से लिखा गया है। जो संगम टेक्स्ट है विच वर कंप्लीटेड बाय द टाइम ऑफ 300 AD। इस तरह से हमारा जो हिस्टोरिकल राइटिंग है वो कंप्लीट हुआ, लिटरेचर वगैरह, है ना। अगर आप बुद्धिस्ट लिटरेचर पे जाएंगे इन द सेम मैनर, सो द ब्राह्मणिकल लिटरेचर इज कंप्लीटेड थ्रू दिस मैनर, है ना। इस तरह से लिखा गया। बुद्धिस्ट लिटरेचर में 2 तरह की लिटरेचर हमने समझा, एक था कैनोनिकल और दूसरा नॉन कैनोनिकल। इसमें जो पहला जो राइटिंग है कैनोनिकल, in the first set Buddhist literature, there are different type of sources on Buddhist literature. पहला सोर्स है it was written in Pali language, चाइनीज में, तिब्बतीन लैंग्वेज में लिखी गई है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज है। इस बुद्धिस्ट लिटरेचर में द पीपल डिवाइड ऑल दिस कैनोनिकल लिटरेचर इनटू डिफरेंट पार्ट्स। सम पीपल से दैट द बुद्धिस्ट लिटरेचर में बी डिवाइड इनटू 9 पार्ट्स, सम पीपल से इट में बी डिवाइड इनटू 12 पार्ट्स, बट रियली द पार्ट विच इज फेमस इज 3, है ना। जिसे हम 3 पिटका बोलते हैं ना, 3 पिटका जो इसमें है, ठीक है। सो देयर आर 3 पिटका जिसे हम 3 बास्केट बोलते हैं। सो दीज आर द नॉलेज ऑफ बास्केट वेयर द थिंग्स हैव बीन रिटन कंपाइल्ड। 3 भागों में बटा हुआ है। जो इसमें जो पहला जो भाग है उसे हम बोलते हैं द फर्स्ट पार्ट इज सूत, है ना। जो सुत पिटका है, इट स्पेशली जो फर्स्ट टर्न, जो 3 टर्न, इस पे क्वेश्चंस आते हैं अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। द फर्स्ट इज अ सुत पिटका। सुत का यहाँ पे मतलब द आइडियाज फिलोसफीज ऑफ बुद्धा आर रिटन इन दिस कंटेक्स्ट। सुत पिटका में क्या लिखा गया है? द आइडियाज एंड द फिलोसफीज ऑफ बुद्धा। बुद्धा ने जो भी चीज बोला, जो भी किया, है ना, उनके जो विचार थे, जैसे रहना चाहिए, ये सब चीज सुत पिटका में लिखी है। ऑल द रिटन्स, है ना, ऑल द टीचिंग आइडियाज एंड द लाइफ स्टाइल्स ऑफ बुद्धा आर मेंशन इन सुत पिटका। जो दूसरी पिटका है द विनय। विनय का मतलब क्या होता है? निवेदन और दूसरा चीज डिसिप्लिन से जोड़ सकते हैं, आग्रह, डिसिप्लिन, इन सब से जोड़ सकते हैं। तो जो विनय पिटका है, इस विनय पिटका में द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स आर गिवन। जो इनके जो संत होंगे ना बुद्धिस्ट धर्म में, उनके जो लीडर होंगे, रिलीजियस लीडर, संत, कवि वगैरह, इन द पीपल हु लिव्स इन बिहार। बिहार जो होता है, जैसे हिंदुइज्म में क्या होता है? मठ होता है। इन हिंदुइज्म मठ आर देयर। तो इन हिंदुइज्म 2 चीज होता है, मठ एंड टेम्पल। टेम्पल में भगवान की मूर्ति होती है, मठ में हिंदू के जो गुरु होते हैं, लीडर्स, रिलीजियस लीडर, पंडित वगैरह, वो लोग रहते हैं। सो इन द बुद्धिज्म देयर आर बिहार, BIHARA, बिहार, एंड देन देयर इज अ स्तूपा। तो बिहार में क्या था? जितने भी मॉन्क रह रहे हैं, है ना, और नन्स रह रहे हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाउ टू लिव, हाउ टू बिहेव, है ना, उनके द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द मॉन्क एंड नन्स आर मेंशन इन दिस बुक कॉल्ड विनय पिटका। ठीक है, विनय पिटका में सारे चीजें हैं। जो द थर्ड है, क्या नाम है इसका? इन दिस अभिधम पिटका, इट इज ए लेटर राइटिंग। जो शुरुआत में सिर्फ 2 राइटिंग लिखी गई थी। अब हमने क्या समझा है? सुत पिटका और विनय पिटका बुक नहीं है, एक बुक नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 किताबें लिखी गई हैं। पहले मैं क्या बोला? दीज आर द सेट्स ऑफ आर्टिकल्स
जिसे लोग कितने पार्ट में बांटते हैं, 9 पार्ट में भी लोग बांटते हैं, 12 में भी बांटते हैं, और मेन पार्टीशन है 3। सो इन दिस थर्ड त्रिपिटका जो है त्रिपिटका, दैट इज अभिधम पिटका, इट इज अ सिस्टमेटिक टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। जैसे वेदास था, ऋग्वेद क्या था, सिंपली लिखा गया था, लोगों को समझ में सही से नहीं आ रहा था, है ना, इसलिए बहुत सारे क्या चाहे सामवेद आया जो म्यूजिकल फॉर्म्स में लोगों को बताया जाता था, है ना, ब्राह्मणाज आया था कि उसमें डिफाइन करे, वेदंगना आया। इन द सेम मैनर अभिधम पिटका वाज रिटन लेटर ऑन, जो विच टॉक्स अबाउट अ सिस्टमैटिक टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, सिस्टमैटिक तरीके से लिस्ट बना के दिया जाए। मान लो आपको मैंने 20 राजा का नाम बता दिया इधर उधर से, तो आप समझ नहीं आएगा। हाउ विल यू अंडरस्टैंड इफ यू आर गिवन द नेम्स ऑफ 10 किंग्स थ्रू क्रोनोलॉजिकली, है ना, इस राज्य के राजा था, इस देश के राजा था, है ना। सो द अभिधम पिटका इज सेम रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, दैट इज सुत पिटका, बट इट इज रिटन इन अ सिस्टमैटिक मैन, लिस्ट वाइज, लिस्ट बना के जो जो उनके टीचिंग्स है, जो जो उनके चीजें हैं, है ना, समरीज हो गया, इसमें जैसे किसी टॉपिक पे किसको कैसे रहना चाहिए, समरीज। तो द सुत पिटका कंटेन्स अ डिटेल एनालिसिस, अभिधम पिटका में हैव अ समरी ऑफ दैट थिंग्स, है ना, और इसमें चीज क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया, इफ देयर इज एनी डाउट अमंग द पीपल ऑफ बुद्धिस्ट फॉलोअर, है ना। तो द समरी ऑफ द फॉलोइंग डाउट, द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, the details will be there in the अभिधम पिटका। तीनों में समझ में आया, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चंस, देयर आर 3-4 क्वेश्चंस इन द लास्ट 20 years इज आस्क्ड ऑन द पर्टिकुलरली दिस पिटका ओनली, है ना, जो त्रिपिटका है, इसके मतलब इस बारे में। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट है यूपीएससी में, द अभिधम पिटका कंटेन्स द ओरिजिनल टीचिंग्स एंड आइडियाज ऑफ बुद्धा। स्टेटमेंट, this is the wrong statement, क्यों? because Sut Pitka contains the original teachings and ideas of Buddha। एक दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, अभिधम पिटका also contains ideas and philosophies of Buddha। ये स्टेटमेंट है, ट्रू है, कौन फॉल्स बोला? इट्स ट्रू है, कैसे ट्रू है? ऑल्सो, मतलब सुत पिटका करता ही है, बट दिस इज ऑल्सो, इट इज इन अ सिस्टमैटिक मैनर, बट इट ऑल्सो कंटेन्स हिज टीचिंग्स, है ना। तो इस तरह से स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं। वी विल सी द प्रीवियस एडमिशन पेपर्स, देन वी विल गो इनटू एनालिसिस, है ना, ये सब हमें समझ में आएगा। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर आपको समझ में आया, पर बुद्धिस्ट लिटरेचर था, इट वाज नॉट ओनली कैनोनिकल, और भी राइटिंग्स इसमें किया गया है ना, जैसे कि कई सारे राइटिंग, जैसे स्पेशली श्वेतांबर, जैसे अब जैनिज्म में डिफरेंसेस आया है ना, जैसे इसमें भी डिफरेंसेस आया है ना। तो सुत पिटका के बाद जो मेजर जो डिफरेंसेस आपको मिलेगा जो नॉन कैनोनिकल में, उससे पहले हम दूसरे कैनोनिकल भी पढ़ लेते हैं। त्रिपिटका के अलावा एक जातक राइटिंग बहुत फेमस है, जातक आपने सुना होगा, एंड दिस वाज द स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। जातक में एक पेंटिंग भी बनी हुई है, अगर आप जो पेंटिंग्स में जाएंगे, इलोरा वाले पेंटिंग्स में वगैरह में जाएंगे, यू विल फाइंड the paintings are made on the Jatak stories where the descriptions are written how Buddha was working, born in the previous lifestyle। मतलब बुद्ध का जन्म होने से पहले दूसरे प्रीवियस बर्थ में क्या क्या करते थे, इन सब का डिस्क्रिप्शन कहाँ दिया गया है? जातक में, which tells many stories। मान लो बुद्धा was born in 6th century BC in India, और 9th century BC में बुद्धा दूसरे अवतार में थे, let's say। So that book will also talk about what was happening in that time, क्या पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो these sources are very much important to understand our history, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे राइटिंग्स है, सुत पिटका, विनय पिटका के बारे में बहुत सारे चीज़ें हैं, आपने जानते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटिंग इन द नॉन कैनोनिकल इज डिफरेंट वन। नॉन कैनोनिकल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वी हैव मिलिंदपना, है ना। So these writings, which especially contains a dialogue, and this ruler Milinpana is compared with the Indo-Greek very famous ruler called Menander, and it was said that this Milinpana was a dialogue between the monk, Buddhist monk Nath-sen and the king Menander। इन दोनों का जो डायलॉग था, उस डायलॉग के बारे में इस राइटिंग्स में दिया गया है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ
बुद्धिस्ट लिटरेचर, बट इट वाज नॉट रिटन थ्रू अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव, है ना, नॉन कैनोनिकल पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। उसी तरह और भी राइटिंग है, जैसे श्रीलंका में हमें मिलता है, देखने को मिलता है, क्या नाम है, दीप वंश, महावंश। इट ऑल्सो कंटेन्स अ लाइफ ऑफ बुद्धा, है ना, हाउ द काउंसिल्स, द 4 काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हेल्ड ड्यूरिंग अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, how Ashoka funded, supported Buddhism. So these things are very much important for us to understand. But the most important point, most of these writings were written in Pali and Prakrit language. But there are other texts also of the Buddhist literature which were written in Sanskrit language. जैसे संस्कृत लैंग्वेज में जो चीज़ें बनी, स्पेशली अब बाद में चल के जो आपके जो बहुत सारे महायान थिंकर मिलेंगे बुद्धिज्म के, आई विल टेक सम नेम, नागार्जुन, वसुबंधु, असंगा, है ना, आर्यदेव, दिगनागा. So these all philosophers of Buddhism, है ना, which were following Mahayana, they were writing in Sanskrit language only. So the earlier texts of the Buddhism were written in Pali, but in the later phase, these all writings were written in Sanskrit. और Sanskrit was also the main causes behind the decline of Buddhism. क्योंकि लोग बुद्धिज्म के प्रति क्यों आए थे? सिंपल लैंग्वेज था, आसान से समझ में आया था. Now the Sanskrits were adopted by the official language of Buddhism after 1000 years of the founding of Buddhism. So the local लोग वो दूर ले जा रहे थे चीज़ें. ये मेन कारण भी है डिक्लाइन होने का, ठीक है. So these things are important. इसमें कई सारी और भी, जैसे कि आपके संस्कृत में ललित विस्तारा है, इट इज अ हेजियोग्राफी ऑफ बुद्धा लाइफ, है ना. So these are the writings important in order to बुद्धिस्ट लिटरेचर. जैन लिटरेचर में भी हमारे पास श्वेतांबर ने कई सारे कैनोन राइटिंग्स बनाए हैं, जैसे 12 अंग, 12 उपअंश, 10 पेनाज, 6 सुत्त हो गया, मूल सुत्त हो गया. So these are the important writings of Jain literature which tells about the contemporary of that time, है ना, उस टाइम के लाइफ कल्चर के बारे में बहुत सारे चीज़ें हमें बताता है, ठीक है. तो दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. नॉन कैनोनिकल में इनके पास बहुत सारे राइटिंग्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एक है जैन पुराण, है ना. सो जैन पुराण में श्वेतांबर्स कॉल देम एज अ चरिता. चरिता मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? चरिता, एनीवन? हाँ चरिता, हाँ चरित, जैसे रामचरित मानस है ना, इंग्लिश में चरिता बोले, उसे चरित. कैरेक्टर नहीं होगा. हाँ, बायोग्राफी. So charita in the Sanskrit word in ancient time may be compared as a biography. So this especially Jain Puran, according to the Jain people, they compared Jain Puran as a charita. जैसे जैन का, हाँ कुछ डाउट है आपको? हाँ, महावीर जैन का. तो दिस वाज लाइक ए हेजियोग्राफी, बायोग्राफी है. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आदि पुराण. सो सी आदि पुराण अगर स्टेटमेंट है, आदि पुराण कौन सा टेक्स्ट है? तो दिस इज अ जैन टेक्स्ट, आदि पुराण. सो आदि पुराण सीम्स टू बी, जैसे अभी एक मूवी आई आदि पुरुष, है ना. द पीपल विल बी कंफ्यूज्ड विद आदि पुराण, वेदर इट वाज अ हिंदू टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है या बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बट इट इज अ जैन टेक्स्ट, है ना. The Adi Puran, which was written in the 9th century AD. So especially this Adi Puran narrates the life of the first तीर्थंकर ऋषभ. महावीर जैन कौन से तीर्थंकर थे? 20, उससे पहले 23rd, मतलब 23 तीर्थंकर आ चुके थे. So this Adi Puran narrates the life story of Rishabh, the first one, Rishabh, है ना, who was basically known as Adinath. The Rishabh in this Adi Puran writing is known as आदिनाथ, है ना. ये है. उसके बाद और भी राइटिंग्स है हमें, जैसे हरिवंश पुराण है. हरिवंश पुराण गिव्स द वर्जन ऑफ महाभारत. तो हरिवंश पुराण, तो यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, द हरिवंश पुराण विच गिव्स द स्टोरीज ऑफ महाभारत कॉल्ड कौरव, पांडव्स, है ना, कृष्णा, बलराम. तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूँ? द हरिवंश पुराण विच गिव्स द स्टेटमेंट ऑफ महाभारत leaders is a Brahmanical text. Wrong. And the people, most of the people who have not read this statement, they will take it correct. Why? Because it seems, first of all, it is a Puran. A Puran had been a Brahmanical text.
The second point, the statement also mentions that it is talking about Kaurav Pandya. That is a Mahabharata. Mahabharata is a Brahmanical text. But this Puran, the Puran name is Harivansh Puran, is a Jain text, है ना, Jain text है, and it is also not a religious text. It's a non canonical text, है ना. तो ये हमें समझने की जरूरत है. इस तरह से कई सारे पुराण हैं, कई सारे स्टोरीज हैं जैन लिटरेचर के बारे में, एंड दिस इज द वे आवर द लिटरेरी कल्चर फ्रीसेस. तो दूसरी कल्चर है जो अब आप समझ सकते हैं, दैट इज अ सेकुलर लिटरेचर. जैसे सेकुलर लिटरेचर में क्या है एंशिएंट इंडिया में, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, हर्षचरिता हो गया, और चीज पाणिनि हैड रिटन अष्टाध्यायी, है ना, पतंजलि का राइटिंग्स हो गया, उसके बाद विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया, है ना, कल्हन हैड रिटन राजतरंगिणी. ठीक है. सो इन द सेकुलर लिटरेचर वी हैव मेनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. हाँ, क्या डाउट है आपको? हाँ, सो डू यू नो इन एंशिएंट टाइम अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश पीपल, हेलो, गिव अटेंशन, according to the Britishers, ancient India had only two historical sources. So there were only two books written in ancient India which may be compared with history. और दो में से सिर्फ एक को बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज कलहंस राजतरंगिणी. अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स, जेम्स मिल वगैरह जो है, इनका मानना है कि जो पहला इतिहास राइटिंग इंडिया में हुआ है दैट इज 12th century. ओके, इन द 12th century, द ईयर कॉल्ड 1149, Kalhan had written Rajtarangini. Rajtarangini is a history of Kashmir from ancient time to the year called 1149 AD. ठीक है, और एक हिस्टोरिकल राइटिंग है. और जो दूसरी राइटिंग है वो है बाण भट्ट का अष्टचरिता, है ना, जो बिल्हन की राइटिंग है. ये सब जो राइटिंग्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस थ्रू दिस वे वी से देयर आर मेनी सच राइटिंग. बिल्हन हैज रिटन, विक्रम अंक देव चरिता ने लिखा है ना. वी हैव द रूलर कॉल्ड हर्षवर्धन, ही हैज रिटन नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली. सो द किंग हिमसेल्फ हैड रिटन मेनी सच राइटिंग इन एंशिएंट टाइम. इसी पीरियड में बाण भट्ट ने हर्षचरिता लिखा है ना. सो व्हेन वी विल गो इनटू दिस एम्पायर, जब हम इस एम्पायर के बारे में बात करेंगे, वी विल अगेन टॉकिंग अबाउट दीज राइटिंग्स. ठीक है. सो दीज आर द राइटिंग विच कैन बी डिवाइडेड इनटू सेकुलर पार्ट्स. ठीक है. और जो दूसरा जो पार्ट है वो संगम लिटरेचर का है. इफ यू गो इनटू द संगम लिटरेचर, alright, what do you find in a Sangam literature? See, we have one history of North India. We have seen that there is a religious Brahmanical text in North India, Vedas, and the series of writings followed by Veda. क्या है वेदा के बाद क्या है? ब्राह्मणाज, आर्यनकाज, उपनिषद्स, ये सब राइटिंग्स है, एंड जो आपने बोला वेदांत. So these are the writings that's happening in North India. If we see the map of India at that time, the Vedic literature में अगर जैसे मान लो इंडिया है, in the Harappan culture, पाकिस्तान का रीजन नॉर्थ वेस्ट इंडिया was a part of India. In the Vedic time, the people came towards तब सिंधु जो regions है यहाँ पे आए. And the post-Vedic period, these regions were the part of India. But the central India was not a part of Vedic civilization. Central India का मतलब अभी का मध्य प्रदेश नहीं, वो तो डेक्कन हो, साउथ हो गया वो. डेक्कन, महाराष्ट्र बिकम द वेस्टर्न इंडिया. मध्य सेंट्रल इंडिया मतलब राजस्थान हो गया आपका, साउदर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़. एंड ईस्टर्न इंडिया में कौन से राज्य आते हैं? बंगाल, उड़ीसा, बिहार. इट विल ऑल्सो बी इन ईस्टर्न इंडिया. ठीक है. सो ये सब नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड सम पार्ट्स, तो ये सब यहीं पे लिमिट थे. सो वी सी इन द एंशिएंट टाइम वी हैव अ लिटरेचर इन नॉर्थ इंडिया कॉल्ड Vedic civilizations, and then after 600 BC we had Buddhism, Jainism, and in सब literature. In the same manner, we also had some type of literature in South India also. The South Indian literature do not talk about North India. North India Vedic literature do not talk about South India. इस समय कोई रेफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिलता है. जो फर्स्ट रेफरेंस है साउथ इंडिया के बारे में जो हमें पता चलता है, that we know from संगम लिटरेचर. तो जिस तरह वैदिक लिटरेचर नॉर्थ इंडिया में, उसी तरह संगम लिटरेचर
साउथ इंडिया में। ये रिलीजियस है, वह रिलीजियस सेकुलर दोनों के रूप में डालते हैं, बट इट्स अ साउथ इंडियन लिटरेचर से कैटेगराइज करते हैं, है ना। तो ये जो लिटरेचर है, अगर आप दोनों तरह से बोल सकते, जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या है, नॉन कैनोनिकल है, सो द टेक्स्ट्स आर रिलीजियस इन नेचर बट रिटन बाय द नॉन रिलीजियस पर्सन, ठीक है। इसको हम उस कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है, कि जो मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स इन द संगम लिटरेचर आर रिलीजियस बट मेनी ऑफ द राइटिंग्स आर आल्सो नॉन रिलीजियस, है ना। ये दोनों मिथ्स है यहाँ पे, वैदिक से डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1500 टू 1000 BC, मतलब ये बोल सकते हैं कि इनका कितना टाइम चला, 500। एंड इफ यू कैलकुलेट लेटर वैदिक पीरियड आल्सो, तो 400 हम इसमें और ऐड कर देंगे, दैट विल बिकम 900. But the Sangam the people say the Sangam was an assembly where the poets and the learned person used to sit. They used to prose, they used to make poetry, prose बनाते थे, लिखते थे. They used to talk about society, commentary देते थे. So इस Sangam literature जो है, Sangam literature are literature which were produced by a assembly where the people used to sit, talk about society, culture and politics. समझ में आ रहा है? तो संगम लिटरेचर एक तरह से असेंबली हो गया, उस असेंबली में जितने भी राइटिंग्स लिखे गए हैं वो सारे राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, दीज राइटिंग्स रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड आर अ पार्ट ऑफ संगम लिटरेचर। जिस तरह से वेदा हमने बोला कि इस टाइम पीरियड में था एंड इस टाइम तक चला, संगम लिटरेचर में द असेंबली लास्टेड फॉर अबाउट 10,000 ईयर्स, दैट इज 9,990 ईयर्स। मतलब इतने साल तक द पीपल lived seated together. I'm not talking about one person was there, the many person different times में बने। इसमें तकरीबन 197 किंग ने सपोर्ट किया इसको। तो पांड्याज किंग जो थे इन इंडिया, साउथ इंडिया में 3 राज्य सबसे इंपॉर्टेंट है, पांड्याज, चेरा एंड चोला। तो पांड्याज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ द संगम असेंबली। इन दिस असेंबली द पीपल हैव रिटन मेनी थिंग्स, बहुत सारा चीज़ लिखा, उन्होंने सोसाइटी के बारे में बताया। दे ऑल्सो से that the people of the South India were pastoral. जैसे नॉर्थ इंडिया में बोला, वैदिक में क्या बोला कि हम एग्रीकल्चरल थे, उस समय एग्रीकल्चरलिस्ट थे। साउथ इंडिया में भी संगम लिटरेचर सेम चीज होगी। हिंदू धर्म में कितने गॉड हैं, कितने करोड़ है? हाँ, 24, 33। कैन यू इमेजिन अभी पॉपुलेशन इंडिया कितना है? जब देश आजाद हुआ तो कितना पॉपुलेशन था? इफ यू गो टू द वैदिक सिविलाइजेशन, जब गॉड की कांसेप्ट आता है, उस समय तो लोग भी नहीं थे इतना, करोड़ में तो पॉपुलेशन भी नहीं था। तो द पॉइंट इज दैट इट्स अ मिथिकल बट इट मे बी ट्रू। इफेक्ट्स नहीं है, ये भी तो सकता है कि जिस जहां से हमें सोर्स मिला है 1000 में, वो हमें कंटेंट ही ना पढ़ने आता हो। उनका 1000 का मतलब कुछ और होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। Is there anyone from UP here? UP से कोई है? No? आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप अपना बताइए, मध्य प्रदेश से हैं। एकड़ का क्या मतलब होता है? हाँ हाँ, चलो इन्होंने तो और भी चीज डिटेल में बता दिया। So 1 acre means 2 point, and you are talking about MP. MP की बात कर रहे हैं। इफ यू गो टू सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, 1 एकड़ में तकरीबन 5 बीघा होते हैं इन उत्तर प्रदेश। इफ यू गो टू बिहार, नॉर्दर्न बिहार, यू विल फाइंड 1 एकड़ में 1 एकड़ बराबर 1.2 और 1 बीघा होता है, 1.2। तो आर यू गोइंग टू फाइंड द मेजरमेंट्स ऑफ बीघा? देयर आर डिफरेंसेस इन द डिफरेंट रीजन्स। तो अगर आप यूपी से है और आप बोलेंगे कि आपके पास मतलब 2 बीघा जमीन है, मतलब आपके पास आधा एकड़ जमीन भी नहीं, मतलब यू डोंट हैव हाफ एकड़ लैंड इन उत्तर प्रदेश। बट इन बिहार इफ यू से यू हैव 2 बीघा, इट मीन्स यू हैव मोर देन 1 एकड़ लैंड। तो बीघा जो कंसेप्ट है उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश में कैटेगरिकली डिफरेंस हो रहे हैं। तो एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, कि इतना हुआ। जैसे आपने रामायण के बारे में बोला, क्या रामायण 1000 वर्ष में लिखा गया होगा? क्या वैदिक सिविलाइजेशन लिखने में कितने टाइम लग रहे थे? 1500 वर्ष। इट स्टार्टेड टू बी
कंपोज फ्रॉम 2000 BC एंड इंडियन इन 500 BC। तो 1500 वर्ष में कैसे लोग लिखे होंगे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो संगम लिटरेचर में कितने साल लग गया? अराउंड 10,000, ये डेट भी याद कर लेना आप लोग, है ना, 9,000, एंड देन देयर वर 8,598 पोएट्स वर देयर, जिन्होंने कंपोज किया इन सारे राइटिंग्स को। इन सब में दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, है ना। दीज आर द राइटिंग पढ़ने केलिकाकू, तिला, कानाकाऊ, दीज आर द इम्पोर्टेंट संगम लिटरेचर वर्क। ये सारे इंपॉर्टेंट संगम लिटरेचर राइटिंग्स हैं। जैसे इंडिया में, जैसे नॉर्थ इंडिया में हमारे पास वेदास वगैरह है, उस तरह साउथ में ये सारे राइटिंग्स इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू फेमस संगम epic and these are the third is important also, the Sila Patadikaram, Mani Mekalai and Shivaji Sidamani. These are the epic in the South India as we have epic in the North India. North India में कौन सा epic है? महाभारत एंड रामायण। They have also 3 important epic in the South India, ठीक है। साउथ इंडिया में एक टेक्स्ट है जो आप लोग इसकी स्टोरी सुने होंगे पहले। दिस वाज रिटन बाय इलांगो अदिगाल एंड दिस डील्स विद द स्टोरी ऑफ अ पर्सन कॉल्ड कोवाला। दिस स्टोरी इन दिस कोवालन गोज समवेयर एंड ही फॉल्स इन लव विद माधवी एंड देन ही फॉरगेट्स हिज नोबल वेडेड वाइफ। भूल जाते हैं। एक नॉर्थ इंडिया में प्रचलन एक मूवी है संतोषी माता, आपने नाम सुना संतोषी माता? अच्छा, कौन है? गॉडेस है ना। फ्राइडे या थर्सडे उनका बर्थ होता है ना। इट्स शी इज अ वेरी फेमस गॉडेस फॉर वुमेन। वुमेन में बहुत प्रचलित है। यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली फास्टिंग वगैरह करते हैं। तो उन पे एक मूवी है। इन दैट मूवी द सेम स्टोरी है दैट जो वाइफ होती है, जो संतोषी माता की व्रत करती रहती है, उनके हस्बैंड कहीं जाते हैं और वो भूल जाते हैं चीज़ें। इंसिडेंट ऐसा होता है, ही फॉरगेट्स एवरीथिंग एंड देन ही मैरिड अनदर पर्सन एंड देन बाद में याद आता है उन्हें, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दिस डील्स विद इफ यू कीप फेथ इन द गॉड यू विल गेट रिटर्न। ये स्टोरी उसमें है। सो ये जो फॉलोइंग और जो फॉरगेटिंग वाली स्टोरी है, इट वाज देयर इन द संगम लिटरेचर ऑल्सो। सो यू ऑल्सो ट्राई टू हैव अ लुक ऑन दिस थिंग्स। ये सब राइटिंग में देखना एंड यू ट्राई टू हैव अ लुक ऑन दिस, है ना। टेस्ट पेपर में हम इसको और डिस्कस करेंगे, आप पढ़ना। सो थ्रू दिस मेथड्स वी कम टू अंडरस्टैंड दैट द लिटरेचर हैव बीन लाइक दिस। इस तरह से लिटरेचर हुआ। दूसरी जो कैटेगरी है राइटिंग की, वो फॉरेन ट्रेवलर्स थी। फॉरेन ट्रेवलर्स से पहले अभी हमने शॉर्ट नाम देखा था ना, 3 नाम थे। कौन नाम था? हमारे पास टाइम है ना अभी, we are going to finish, all right, so we will discuss tomorrow, but in 10 minutes I will discuss foreign travelers। कल हम बात करेंगे पेपर पे, पेपर कैसे बनना शुरू हुआ और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कैसे डिफरेंट है, ठीक है। पेपर, द पेपर, जैसे पेपर वाज यूज्ड इन चाइना इन द 3rd century BC। चाइना में पेपर 3rd century BC में ही आ गया था, बट इंडिया इट टुक अबाउट 1500 years टू कम टू इंडिया, है ना। तो वी डोंट हैव पेपर जहाँ पे हम लिख पाते हैं। अगर तो हम कल बात करेंगे। आज हम फॉरेन ट्रेवलर्स का कर लेते हैं। तो फॉरेन ट्रेवलर्स में हमने क्या देखा? देयर वर कितने, आप बताओ? 3। तो पहले जो था ग्रीक से लोग आए, स्पेशली ड्यूरिंग टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो द फर्स्ट पर्सन हु केम वाज मेगास्थनीज। ही हैड रिटन अ बुक। ही केम टू इंडिया, ही रोट इंडिका। जब ये इंडिका लिखते हैं, when he wrote Indica, when he got back from India and then he writes Indica, he mentions this thing in Indica. The Indian society was divided into 7 classes. The first class जो है, it's the philosophers, cultivators, herdsmen, artisans, traders, soldiers, overseers and counselors. इसको क्रिटिसिज्म मिलता है इंडियन राइटर्स द्वारा। द इंडियन हिस्टोरियंस से we have no evidences that the Indian society was divided into this class। 7 क्लास में बटा हुआ है। ये हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द कंटेम्पोररी राइटिंग लाइक पुराण ऑल्सो टॉक्स अबाउट मौर्याज। वी हैव बुद्धिस्ट राइटिंग, वो भी मौर्य के बारे में बात करता है। एंड देन वी हैव अर्थशास्त्र विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट मौर्याज, बट दिस ऑल टेक्स्ट इन इंडिया। और जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है, सो नॉन ऑफ दिस सोर्सेज टॉक्स दैट द मॉडर्न सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, है ना। तो मिसअंडरस्टूड किए होंगे आने के बाद, है ना।
लैंग्वेज अलग थी, उस समय ट्रांसलेशन फैसिलिटीज इतना ज़्यादा नहीं था। तो ये सारी एक क्रिटिक है इनकी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हेन ही रोट इंडिका इन द कंटेम्पोररी टाइम द इंडिका इज नॉट अवेलेबल इन द ओरिजिनल फॉर्म। इस पे मतलब आप सोचना है, आर्टिकल है जो इंडिका इन्होंने लिखा विच वॉज लॉस्ट वेरी इन द एंशिएंट टाइम ओनली। इंडिका लिखने के बाद देयर वर अदर राइटर्स हु साइटेड इंडिका इन हिज बुक। हमारे पास जो इंडिका का जो रेफरेंसेज है वो सिर्फ उस साइटेशन से, जैसे इन्होंने कोई किताब लिखा और आपने उसे साइट किया कि इन्होंने ये लिखा है एंड हिज बुक इज लॉस्ट, बट योर साइटेशन इज देयर ना इनकी, पर पूरी बुक तो नहीं है। सो वी डोंट हैव अ कंप्लीट बुक अवेलेबल बट वी हैव अ साइटेशन। साइटेशन किसका? द Arian, Strabo, Pliny and these people also wrote about India and these are the foreign travelers. They wrote about India and they cited about Indica. What is how Major Smith mentioned about India. ये सारे references यहाँ से है। हो सकता है उन्होंने मिस साइटेशन दे दिया हो, मिस इंटरप्रिटेशन भी तो होता है। मैंने आपको ब्राह्मण वाला स्टोरी बताया, बाल से मुर्गा बन गया है ना। सो द पॉइंट इज दैट ये भी फिर भी till many extent they provide some type sources on India. एक तो फर्स्ट कैटेगरी हो गया ग्रीक का, दूसरी कैटेगरी चाइनीज हिस्ट्री का है। द चाइनीज पीपल केम, और ये लोग ज़्यादातर कब आए थे? गुप्ता एम्पायर और हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। तो चाइनीज हिस्टोरियंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादातर मॉन्क लोग आए थे, और सबसे इम्पोर्टेंट फायान हो गया, हुनसांग हो गया, स्पेशली टाइम वो जाके नालंदा में भी गए एंड he studied there. He took admissions in Nalanda University because when he came to India, he was not aware with Sanskrit. Sanskrit उनको नहीं आती थी. And then the most of the writings in Buddhism were, sorry, when he came, he neither knew Sanskrit nor Pali. इनको सिर्फ चाइनीज आती थी. It was मतलब compulsory for him to read Sanskrit and Pali both, क्योंकि यहाँ पे दोनों भाषा में राइटिंग्स लिखी हुई। तो उनके लिए क्या हुआ, वो तब कौन से टाइम पे आए थे? ही केम हियर इन द 6th century, 7th century AD में है। इन द 7th century AD most of the Buddhist writings were in Sanskrit and the original writings were in Pali. So he did not know any of the language. So he stayed here in Nalanda and then he studied for many years. He taught here also and then he returned back with many sources. बहुत सारे किताब ले गए थे यहाँ से वो, ठीक है। When we discuss about him in future in detail, we will discuss in detail, ठीक है। इस तरह से हम देखने को मिलता है कि the Chinese people came and they had also written about India. The third category के जो people है अरब है। अरब वाले लोग कब आए यहाँ पे? जब 630 में इस्लाम का उदय हुआ, है ना। In 630 when Islam was founded, और 7th century में क्या हुआ? In the 7th century इस्लाम के बारे में आप सब जानते हैं नहीं जानते हैं? कब आया था इस्लाम? हाँ, जैसे हम रिलीजन पे नहीं जाते हैं, जैसे वो तो बोलते हैं कि उनका धर्म सबसे, द मुस्लिम पीपल से दैट द मुस्लिम रिलीजन इज द ओल्डेस्ट रिलीजन, ठीक है। हर धर्म ऐसा ही बोलता है। बट इफ यू गो टू द हिस्टोरिकली, जैसे क्रिश्चियन रिलीजन वाज फाउंडेड इन द ईयर, उनके नाम से ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। इन द सेम मैनर पैगंबर जो है हजरत मोहम्मद, he got the idea and then he founded a state in the year called 630. उनका जन्म 570-71 के आसपास हुआ था and he was about 60 year old in that time, ठीक है। फाउंड किया and he died after 2 years. तो 632 में मरे, but it was a religious in nature. The Islam was a religious in nature, but by the time of 680, 680 आते आते it become a state और ये एरिया एक्सपेंशन करना शुरू किए। and if you see the year called 712, the Muhammad bin Qasim he came to the Sindh region, ठीक है। तो इस तरह से इस्लाम यहाँ आना धीरे धीरे शुरू हो गया। मोहम्मद गौरी आए, उससे पहले गजनी आए थे and they founded Delhi Sultanate. So through these battles, what happened, through this series of events, the Arab people, the people from Muslim regions, ईरान, तुर्की, अरब, है ना, इन सब से लोग से आना शुरू किए। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट द पीपल हु केम वाज अल-बिरूनी एंड ही हैज रिटन अ बुक कॉल्ड तहकीक-ई-हिंद। इनकी बुक के बारे में बात करेंगे ना, ही हैज मेंशन्स अबाउट इंडियन स्क्रिप्ट, साइंस, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, लिटरेचर, बिलीफ्स, कस्टम्स, रिलीजन्स, so many things. He is the first person, he say,
that the Gupta Empire was founded in the year called 241 years after the Saka year. Saka year क्या है? Saka year कब फाउंड हुआ था? 78 AD में. If you calculate it, कितना हो जाएगा? 319, and 319 is a modern day of the foundation of Gupta Empire. अभी का डेट वही है ना. So in 1000 years, मतलब आज से 1000 वर्ष पहले he decided, he said the Gupta Empire was founded after 241 years of the Saka year. So he gives many example. उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं. सुलेमान है, अल-मसूदी है. Then we have the persons like Ibn Battuta, फिर यूरोप से भी लोग आना शुरू किए हैं ना. So these are the main sources where we get to know these all literature, Indian literature, foreign literature, secular literature or religious literature or Sangam literature. These all literature tells us a lot about history. हम क्या प्लान करेंगे, हम जो टेस्ट सीरीज करेंगे है ना, तो अभी कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इंडियन सोर्सेज का. देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी ऑप्शनल पेपर ऑन इंडियन सोर्सेज. उस पर हम पहले सॉल्व करेंगे बोर्ड पे. दीज आर द मेन स्टेप्स एंड वी शुड अप्रोच दिस टाइप ऑफ आंसर इन आवर राइटिंग, ठीक है. उसके बाद 2 हफ्ते जब हो जाएगा हमारा कंटिन्यूटी, जब 3-4 टॉपिक हो जाएंगे, देन वी विल हैव अ क्लास टेस्ट, है ना. तो हम लोग मेंस पे फोकस करते हैं. यू गाइस आल्सो हैव ज्वाइंड प्रीलिम्स जीएस पेपर क्लास ज्वाइन किया आप लोगों ने, सबने. सो यू आर, मतलब आप बताइए क्या करना चाहिए हमें. वी शुड ओनली बी लिमिटेड टू मेंस के प्रिपरेशंस, है ना. वी शुड नॉट फोकस, है ना. वी विल बी ओनली फोकस ऑन मेंस राइटिंग. वी विल लर्न हाउ टू राइट फॉर मेंस. I will judge you, I will tell you you have not written good, bad, है ना, how to improve, हम सब ये. So this class will be dedicated to mains only. For the online students also, I will give you questions you can write and upload online, है ना, and then we will check it and we'll give you the update with the detailed analysis, है ना. So tomorrow we will discuss the archaeological sources and we will see some events. All right, thank you.